Good evening to all. Good evening, good evening, good evening, good evening to all. I hope I am audible to you clearly. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. If I am audible to you, please write yes in the comment box. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. If yes, please write yes in the comment box. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Please write yes in the comment box. Hand come here. Nilikant Shiva. Okay. Good evening. Good evening. Yes. I hope I am audible to you. And today we are going to see the anti-cancer drugs. Today we will see the anti-cancer drugs. Today we will see the anti-cancer drugs. And in this first part of anti-cancer drug, I would like to explain you what do you mean by anti-cancer drugs, what do you mean by anti-cancer drugs, what is the difference between antimicrobial drugs and anti-cancer drugs, and also I would like to explain you the classification. And because classification part is very, very important, so that's why I am going to take it today. Only I will discuss the classification and all important part. So basically यहाँ पे देखो, we have already seen the cell. We have already seen the cell. What are the different part of cell from anatomical and physiological point of view? Different cell, its part, plasma membrane, the cytosomal fraction, as well as the cytosol organelle. So what are the different organs present in the cell? Cytosol organelle. Then we have seen the cell division, how there is a mitosis, how there is a meiosis. After that we have seen the tissues. So once you understand cell and tissues, cell division, mitosis, meiosis, the process of mitosis, meiosis, what do you mean by different terms like aplasia, metaplasia, hyperplasia, what do you mean by malignant tumor, what do you mean by benign tumor, what do you mean by metastasis? So these terms you have to understood before the starting the anti-cancer drugs. So once you understand this cell, component of cell, cell division, terms related to cancer, and then you can understand anti-cancer drugs very easily. So that's why. Okay. So Vaishnavi Kurale, yes, Vedika Serap, good evening. Good evening. Good evening to all. Right. So today we will discuss the anti-cancer drugs. So initially we will try to understand what do you mean by anti-cancer drugs and what is the difference between antibacterial drug therapy as well as anti-cancer drug therapy, right? So good evening to all. I would like to start. So first of all, there is a huge difference between antibacterial drug therapy and anti-cancer drug therapy. तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं और एंटी कैंसर ड्रग होते हैं, इसमें क्या है डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है इसमें? So there is a huge difference between chemotherapy of infectious disease and cancer, because chemotherapy is term applicable for the both. Chemotherapy is the term applicable for antibiotics as well as anti-cancer drugs. But there is a difference between the chemotherapy for antibacterial and chemotherapy for cancer. Okay. So basically you have to understand what is the difference. कि actually antibacterial drugs मतलब क्या? Drugs used in the treatment of bacterial infection, or antiviral drugs means drug used in the treatment of viral infection, anti-rickettsial drugs, antifungal drugs, anti-protozoal drugs. So they are used in their respective infections, है ना? तो देखो बैक्टीरिया या फिर जो भी फॉरेन माइक्रोऑर्गेनिज्म है, so microorganism and humans, they have a difference. So bacterial cell, microorganism cell and human cell, that is having a particular difference. बैक्टीरियल और माइक्रोबियल सेल का जो है और ह्यूमन सेल जो है उसमें डिफरेंस होता है. डिफरेंस किसमें होता है भाई? डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल. डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल, है ना? तो बैक्टीरियल सेल ह्यूमन सेल में सेल वॉल का डिफरेंस है. बैक्टीरियल सेल ह्यूमन सेल में डिफरेंट एंजाइम्स जो है
So there is a difference in the enzymes in metabolites. So in the bacterial cell and human cell, what is the difference? So first difference is nothing but the cell wall, second difference is nothing but the metabolism, third difference is nothing but the ribosomes. There are different ribosomes. जैसे आपका ह्यूमंस में होता है ATS राइबोसोम है ना, ATS राइबोसोम 50 एंड 30 50s एंड 50s राइबोसोम होता है, एंड एक है ना. सो हियर इज अ ATS राइबोसोम इन द ह्यूमंस, पर बैक्टीरिया में होता है आपका 70s राइबोसोम. सो इन द बैक्टीरिया राइबोसोम एंड प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी इज डिफरेंट. हॅलो, हा सर बोला सर. तर कट ऑफचं काय दिलेलं नाही त्यांनी आय थिंक भरपूर गोळ केलाय. मी सर कॉल करू तुम्हाला एक 8:30 वाजता. मी लेक्चर घेतोय तिथे, करतो सर कॉलवर. Bacteria has a 70s ribosome and in the humans we have 80s ribosome, right? There is a difference in the cell wall, there is difference in the enzymes of the cell, there is difference in the ribosome of the microorganism and humans. So ये सब difference है. That's why antibacterial drugs can target selectively to a बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग जो होते हैं वो सिलेक्टिवली टारगेट कर सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को. क्यों? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल और ह्यूमंस का सेल, इसमें क्या है, डेफिनाइट डिफरेंस है. देयर इज डेफिनाइट डिफरेंस इन आइदर इन टर्म्स ऑफ योर सेल वॉल, इन टर्म्स ऑफ एंजाइम्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इन टर्म्स ऑफ एंजाइम्स फॉर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, राइबोसोम्स. सो दैट्स व्हाई एंटीबैक्टीरियल ड्रग और सिंपली एंटीबायोटिक्स कैन सिलेक्टिवली किल द बैक्टीरिया. तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग क्या है कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग किल करते हैं. किसको किल करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं. आपने सेल को करते हैं क्या? नहीं. बिकॉज एंटीबायोटिक्स दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर नेचर, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन. सो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स दे विल टारगेट द माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड दे विल नॉट अफेक्ट द ह्यूमन सेल, है ना. तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग दे विल टारगेट द बैक्टीरिया, नॉट ह्यूमन सेल, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द ह्यूमन सेल एंड बैक्टीरियल सेल. तो उसमें कुछ डेफिनेट डिफरेंस है. बट व्हाट इज कैंसर? कैंसर क्या होता है? कैंसर इज नथिंग बट द, इट इज नथिंग बट द योर ओन सेल, है ना. कैंसर क्या होता है? कैंसर इज नथिंग बट द योर ओन सेल, है ना. कैंसर मतलब आपके खुद के सेल है, राइट. आपके खुद के सेल है कैंसर सेल, ना कि किसी ने आपके शरीर में लाके रखे, राइट. सो कैंसर इज नथिंग बट द योर ओन सेल्स व्हिच हैव अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, अनकंट्रोल्ड डिफरेंशिएशन, है ना. तो कैंसर सेल क्या है? कैंसर इज नथिंग बट योर ओन सेल. कैंसर सेल इज ओन सेल व्हिच हैव अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, अनकंट्रोल्ड डिफरेंशिएशन. प्रोलिफरेशन मतलब वही, मतलब डिवीजन, है ना. सो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन एंड अनकंट्रोल्ड डिफरेंशिएशन, दैट इज नथिंग बट द कैंसर सेल, राइट. So cancer cell are nothing but your own cell and your normal cell and cancer cell. So there is a very little difference, है ना. बहुत ही कम डिफरेंस होता है. There is a little bit difference in the cancerous cell and normal cell. तो नॉर्मल सेल के बीच में, कैंसर सेल के बीच में there is a very small difference. उसके बीच में छोटा सा ही डिफरेंस होता है. जैसे कि आपका नॉर्मल सेल है और माइक्रोबियल सेल है, उसमें डिफरेंस होता है. बट कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या है कि डिफरेंस है ही नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है. और डिफरेंस क्या है? सो ओनली कैंसरस सेल हैव अ हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल. आपके नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में कैंसर सेल का मेटाबॉलिज्म क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस. एंड दैट्स व्हाई एंटी कैंसर ड्रग जो होता है, एंटी कैंसर ड्रग मतलब क्या? नोन एज अ साइटोटॉक्सिक ड्रग. एंटी कैंसर ड्रग आल्सो नोन एज अ, राइट, रिमेंबर, एंटी कैंसर ड्रग आल्सो नोन एज अ एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग. Anti-cancer drugs are also known as a anti-neoplastic drug. Anti-cancer drug also known as a anti-neoplastic drug. Anti-cancer drug also known as a cytotoxic drug. Also known as a cytotoxic. What is meant by cytotoxic? Cytotoxic है ना. Anti-cancer drug also known as cytotoxic. Anti-cancer drug also known as a anti-neoplastic. Neoplasm मतलब क्या? Neo मतलब new and plasm मतलब सेल. तो नया सेल जो है उसको बोलेंगे एंटी कैंसर. मतलब uncontrolled unproliferation and relatively new cell. So new anti-neoplastic drug means anti-cancer drug. Anti-cytotoxic drug means, sorry, cytotoxic drug means क्या? Anti-cancer drug. Cytotoxicity और cytotoxicity मतलब cyto मतलब सेल and toxicity मतलब सेल को टॉक्सिटी होना, है ना. तो cytotoxicity मतलब क्या है? कि सेल को किल कर देना.
So antineoplastic drug or anti-cancer drug or anti-cancer drug or antineoplastic drug or that cytotoxic drug. So these terms are the similar terms. ये तीनों terms क्या है, similar है, anti-cancer, anti-neoplastic and cytotoxic, है ना. तो ये तीनों terms क्या है, similar terms है, they are the synonyms you can say. Okay? तो मैंने बोला है कि because in the bacterial cell or in the microbial cell and in the human cell there is a huge difference. There is a difference of cell wall, there is difference of enzymes, there is difference of metabolites, there is difference of metabolism, there is difference of protein synthesis, replication, transcription, translation. But in the cancer cell and in the human cell, in the cancer cell and in the normal human cell, so there is a no difference. That's why anti-cancer drugs, they are not having specific action. So anti-cancer drug, remember, very important terms, very important concept I am going to explain you. Anti-cancer drugs, they are not a specific in their action. So anti-cancer drug को क्या है, anti-cancer drugs, they are not a specific in the action, but antibacterial drug are a specific in action. So है ना. So that's why देखो infection क्या होता है, infection is nothing but the foreign microorganism that will come into your system or that will invade your system, right? So when a microorganism invades your system, there is a difference in the bacterial cell, there is a difference between microbial cell and human cell metabolically. So biologically also there is a difference. So there is a difference in the microbial cell and human cell biologically as well as metabolically. So therefore antibacterial drug, they can act selectively. Antibacterial drug, they can act selectively on a microorganism and they will kill the microorganism without affecting the host cell. आपका जो सेल है उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ. सो एंटीबायोटिक क्या करता है, एंटीबायोटिक माइक्रोबियल सेल को किल करता है, आपके सेल को कोई यहाँ पे डैमेज नहीं होगा. सो एंटीबैक्टीरियल ड्रग किल द सिलेक्टिवली माइक्रोबियल सेल विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल. बट एंटी कैंसर ड्रग क्या होता है, बट देयर इज अ क्लियर डिफरेंस इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल. बट ओके, सो देयर इज नो क्लियर डिफरेंस. बट बैक्टीरियल सेल में, ह्यूमन सेल में डिफरेंस है in terms of metabolism, in terms of biology, in terms of other terms. But there is no clear difference in the metabolic reactions of normal cell, है ना. आपका जो normal cell है और आपका जो cancerous cell है उसमें क्या है, difference नहीं है. So there is no difference, clear difference in the normal cell and cancer cell. As there is no difference, जैसे कि वो आप पे difference नहीं है ज्यादा कुछ, कैंसर सेल में और नॉर्मल सेल में डिफरेंस नहीं है. तो दैट्स व्हाई ए एंटी कैंसर ड्रग विल किल द कैंसरस सेल, नो डाउट. आपका कैंसरस सेल जो है उसको एंटी कैंसर ड्रग किल करेगा. सो एंटी कैंसर ड्रग विल डिस्ट्रॉय द कैंसरस सेल, बट एट द सेम टाइम इट विल आल्सो अफेक्ट द नॉर्मल सेल. आपका जो नॉर्मल सेल है उसको भी किल करेगा. सो देयर इज वन टर्म आई यूज्ड टू से, दैट इज नथिंग बट द you cannot kill the cancerous cell without affecting the normal cell. So you cannot kill the cancerous cell without killing the normal cell, simply. So कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने वाले ड्रग्स आपके नॉर्मल सेल को भी डिस्ट्रॉय करेगी. So that's why, because here is you should know कि बैक्टीरियल सेल में, माइक्रोबियल सेल में और ह्यूमन सेल में डिफरेंस होता है. उसमें इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल का डिफरेंस होता है, इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल का डिफरेंस होता है, साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स होते हैं उसका डिफरेंस होता है ना. रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के लिए जो एंजाइम है उसमें डिफरेंस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में डिफरेंस होता है, राइबोसोम्स में डिफरेंस होता है. दैट्स व्हाई एंटीबैक्टीरियल ड्रग कैन टारगेट सिलेक्टिवली टू ए बैक्टीरियल सेल. बट कैंसर और नॉर्मल सेल में डिफरेंस नहीं होता है, देयर इज नो क्लियर डिफरेंस, एंड दैट्स व्हाई एंटी कैंसर ड्रग किल द कैंसर सेल. एंटी कैंसर ड्रग क्या करेंगे, कैंसर सेल को किल करेंगे, बट साथ साथ में आपके नॉर्मल सेल जो है उसको भी किल करेंगे. एंड दैट्स व्हाई एंटी कैंसर ड्रग्स हैव ह्यूज एडवर्स इफेक्ट. एंटी कैंसर ड्रग्स हैव ह्यूज एडवर्स इफेक्ट, राइट. तो देखो, इट मींस यू कैन नॉट किल द कैंसर सेल, इट मींस यू कैन नॉट किल द कैंसर सेल विदाउट अफेक्टिंग द नॉर्मल सेल. यू कैन नॉट किल द कैंसर सेल विदाउट अफेक्टिंग द नॉर्मल सेल. दैट्स व्हाई जो भी एंटी कैंसर ड्रग है वो नॉर्मल सेल को भी मारते हैं, कैंसर सेल को भी मारते हैं. तो देखो, जिसको भी कीमोथेरेपी हो चुका है, जिसको भी कीमोथेरेपी चल रहा है, तो उसका क्या होगा, जिसको भी कीमोथेरेपी और एंटी कैंसर ड्रग दिया है, कीमोथेरेपी मतलब इट इज अ टर्म रिलेटेड टू यूज ऑफ एंटी कैंसर ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर.
ठीक है। तो जो भी कीमोथेरेपी का जो भी पेशेंट है, जो भी कैंसर का पेशेंट है, उस कीमोथेरेपी चल रहा है, उसमें क्या होता है, तो कीमोथेरेपी चल रहा है तो उसका पूरा की पूरा स्किन ब्लैक हो जाता है, पूरा की पूरा स्किन उसका ब्लैक हो जाता है, मतलब देर इज अ अल्सरेशन ऑन द स्किन ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग द कीमोथेरेपी। जिसको कीमोथेरेपी चल रहा है उसका स्किन खराब हो जाता है, स्किन को अल्सर होता है। जिसको भी कीमोथेरेपी चल रहा है उसका जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, जैसे म्यूकोजल मेम्ब्रेन जीआईटी के थ्रू है, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स में है, तो पूरा म्यूकोजल मेम्ब्रेन का इपिथेलियल सेल मर जाता है, तो देयर इज अ डिजनरेशन ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग, ठीक है। तो वहां पे भी अल्सरेशन हो जाएगा। अगेन जिसको भी कीमोथेरेपी चल रहा है वहां पे क्या होगा, तो जहां पे भी कीमोथेरेपी चल रहा है जिस पेशेंट को, उसके बोन मैरो को सप्रेस कर देगा, एंड वहां पे आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन नहीं होने देगा, या फिर जो है उसको किल कर देगा। तो दैट मीन्स कि एंटी कैंसर ड्रग आपका स्किन को अल्सर करेगा, एंटी कैंसर ड्रग आपके बोन मैरो को अफेक्ट करेगा, एंटी कैंसर ड्रग आपके हेयर फॉलिकल भी देखो, है ना। मतलब कैंसर मतलब क्या होता है, कैंसर इज नथिंग बट द रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल। व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज नथिंग बट द रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल। कैंसर क्या है? कैंसर इज नथिंग बट द रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल, रैपिड ग्रोथ। कैंसर इज नथिंग बट द रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल, राइट। सो कैंसर इज नथिंग बट द रैपिड ग्रोथ। कैंसर जहां पे होता है वहां पे कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है। सो कैंसर इज नथिंग बट द अनकंट्रोल्ड अनप्रोलिफरेशन ऑफ सेल। सो रैपिडली ग्रोइंग सेल होता है कैंसर। क्या होता है? रैपिडली ग्रोइंग सेल। इन द कैंसर देयर इज अ रैपिड ग्रोथ, राइट। बट in your normal cells also, normally also, some part of your body, some cells in your body, they are also rapidly growing. तो रैपिड ग्रोथ कहाँ पे होता है आपके? रैपिड ग्रोथ होता है हेयर फॉलिकल। देयर इज अ रैपिड ग्रोथ इन द हेयर फॉलिकल। अब देखो आज हेयर कट कर दो आप, 15 दिन में आपका फिर से हेयर कटिंग के लिए आ जाएगा, है ना। आप आज हेयर कट कर दो, 15 दिन के बाद में वैसे के वैसे हो जाएगा, ठीक है। देन आपका रैपिड ग्रोथ कहाँ पे होता है सेल का? हेयर हो गया, आपका स्किन हो गया, हेयर स्किन, देन बोन मैरो, है ना। स्किन देखो आप, आपका अपर लेयर जो है स्किन का, अपर लेयर ऑफ योर स्किन, है ना। रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन बॉडी इज देयर इन हेयर, देन उसका आता है बाद में स्किन। स्किन में क्या है? एपिथेलियल सेल का रैपिडली ग्रोथ होता है, कंटिन्यूसली आपका स्किन डैमेज होते रहता है, कंटिन्यूसली रिप्लेस होते रहता है सेल। तो यहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन चल रहा है। तो सेल डिवीजन कहाँ पे चल रहा है? रैपिड ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है आपके बॉडी में? हेयर फॉलिकल्स में हो रहा है, एक हेयर फॉलिकल्स, दूसरा हो रहा है आपका स्किन, है ना, तीसरा हो रहा है आपका बोन मैरो। बोन मैरो में क्या हो रहा है कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन इज 7 डेज। सो यू हैव 120 डेज लाइफ स्पैन फॉर आरबीसी, यू हैव 7 डेज लाइफ स्पैन फॉर डब्ल्यूबीसी। तो वहां पे 120 दिन के बाद में नए सेल बनेंगे, 7 दिन के बाद में नए सेल बनने जाएंगे। तो दैट इज डन इन बोन मैरो। सो बोन मैरो में क्या है? फिर रैपिड डिफरेंशिएशन है, रैपिड ग्रोथ है, राइट। सो हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन मैरो, देन म्यूकोजल लाइनिंग, है ना, म्यूकोजल लाइनिंग। देखो हेयर फॉलिकल, स्किन, देन म्यूकोजल लाइनिंग, म्यूकोस मेम्ब्रेन, ठीक है। सो म्यूकोस मेम्ब्रेन आल्सो हैज अ रैपिड ग्रोथ। देन अगेन जैसे आपका ह्यूमंस में, है ना, मेल्स में होता है स्पर्म्स। सो इन द टेस्टिस यू हैव स्पर्म्स। सो स्पर्म्स आर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड। सो स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वहां पे भी रैपिड ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है स्पर्म्स। सो राइट, इन द ह्यूमंस आल्सो, इन द वुमेन्स ओवम बनता है ना। तो रिमेंबर हेयर में हेयर फॉलिकल कंटिन्यूअसली ग्रो होता है, स्किन में एपिथेलियल सेल्स का कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता है, बोन मैरो में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता है ना। म्यूकोजल मेम्ब्रेन में एपिथेलियल सेल का कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता है, ठीक है। देन आपका स्पर्म जो है, स्पर्म कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग है ना, ओवम कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग है ना, राइट। सो दीज आर द एरियाज ऑफ योर ह्यूमन बॉडी वेयर देयर इज एक्टिव सेल ग्रोथ। ये जो एरियाज है जितने भी बोला है मैंने, these are the areas of human body, that is hair, skin, bone marrow, sperms, then mucous membrane where there is a active cell growth, ठीक है। अतः एंटी कैंसर ड्रग क्या करेगा? एंटी कैंसर ड्रग आल्सो मोस्टली अफेक्ट द सेल्स वेयर देयर इज एक्टिव ग्रोथ, बिकॉज कैंसर में क्या होता है? कैंसर इज आल्सो नथिंग बट द एक्टिव ग्रोथ। कैंसर इज आल्सो नथिंग बट द एक्टिव ग्रोथ। इन द कैंसर आल्सो देयर इज अ रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल। In the cancer also there is a rapid growth of cancerous cell. There is a increased metabolism in the cancerous cell. But in the human body also, normally also, hair follicle, skin epithelial cell, bone marrow, sperms, then mucosal membrane also rapidly going. So anti-cancer drug will kill the
cancerous cell where there is a rapid growth. Anti-cancer drug will kill the rapidly growing cell. Okay, that is a cancerous cell, but also affect the normally rapidly growing cell. Normally rapidly growing cell कौन होता है ना? Normally rapidly growing cell कौन होता है? हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन मैरो, देन आपका म्यूकस मेम्ब्रेन, देन आपका स्पर्म्स. सो देखो, कैंसर को तो मार रहा है लेकिन आपके हेयर फॉलिकल को मार रहा है. तो हेयर फॉलिकल को मारेगा तो क्या एडवर्स इफेक्ट होगा? तो बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल, एंटी-कैंसर ड्रग हैज एलोपेसिया एज एडवर्स इफेक्ट, है ना? एलोपेसिया एज एडवर्स इफेक्ट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन एपिथेलियल सेल. सो व्हाट हैपन, देयर इज अ अल्सरेशन इन द स्किन. तो पूरा कीमोथेरेपी होने के बाद में पूरा वो टकला हो जाएगा. कीमोथेरेपी करने के बाद में पूरा उसका स्किन का अल्सरेशन हो जाएगा. कीमोथेरेपी करने के बाद में उसका जो आरबीसी एडब्ल्यूबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो दैट patient who has undergone chemotherapy will have a less immunity because WBCs are destroyed, because he will have anemia because RBC are destroyed in the bone marrow, right? So those patient who is undergone chemotherapy, जिसको chemotherapy दिया है उसका म्यूकोजल लाइनिंग जो है ना, म्यूकोजल लाइनिंग, तो म्यूकोजल लाइनिंग है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीआईटी में म्यूकोस लाइनिंग होता है, सो म्यूकोजल लाइनिंग अफेक्ट होगा, एपिथेलियल सेल्स विल बी डिजेनरेटेड. सो ये क्या होगा? म्यूकोसाइटिस एज एडवर्स इफेक्ट. देन यहाँ पे गैस्ट्राइटिस होगा, है ना, पेरिटोनिटिस होगा. सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट. कैसे एडवर्सली इफेक्ट करता है? देन जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं वहां पे क्या करेगा? दे विल इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस, इट विल कॉज एजोस्पर्मिया. सो एंटी कैंसर ड्रग हैज अ न्यूमरस एडवर्स इफेक्ट. क्यों है न्यूमरस एडवर्स इफेक्ट? समझ में आया आपको, है ना? सो डिड यू अंडरस्टैंड what is the reason, behind adverse effect of anti cancer drug? है ना, आपको समझ में आया होगा कि जहां पे रैपिडली ग्रोइंग सेल है वो क्या है? कैंसर. कैंसर सेल क्या होता है? इट इज अनकंट्रोल्ड, अनप्रोलिफरेटेड, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल एंड अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ सेल विद द लॉस ऑफ सेल फंक्शन. दैट इज नथिंग बट द कैंसर. कैंसर मतलब क्या होता है कि आपके खुद के सेल आपकी बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहते. आपकी बॉडी के सेल आपके खुद के बॉडी के कंट्रोल में नहीं है और वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं. दैट इज अ कैंसर. तो वहां पर एक्टिव ग्रोथ है. तो एंटी कैंसर ड्रग एक्टिव ग्रोइंग सेल जो होते हैं वही पे अफेक्ट करता है, उसको मार देगा. बट आपके बॉडी में नॉर्मली भी एक्टिवली ग्रोइंग सेल होते हैं. नॉर्मली एक्टिवली ग्रोइंग सेल कहाँ पे होते हैं? आपके हेयर फॉलिकल में होते हैं, आपके स्किन में एपिथेलियल सेल्स होते हैं, आपके बोन मैरो में आरबीसी डब्ल्यूबीसी थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, है ना, म्यूकोजल सेल लाइनिंग में एपिथेलियल सेल्स होते हैं, स्पर्म सेल होते हैं और ओवम होता है. ये क्या है? एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स. तो एंटी कैंसर ड्रग कैंसर सेल को मारता है लेकिन उसके साथ साथ में हेयर फॉलिकल को मार देगा, उसके साथ साथ में स्किन के एपिथेलियल सेल को मार देगा, उसके साथ साथ में बोन मैरो में आरबीसी को मार देगा, डब्ल्यूबीसी को मार देगा, प्लेटलेट को मार देगा, साथ साथ में म्यूकोजल लाइनिंग में जो एपिथेलियल सेल है उसको मार देगा, स्पर्म्स का डिस्ट्रक्शन करेगा, ओवम का डिस्ट्रक्शन करेगा. एंड दैट्स व्हाई एंटी कैंसर ड्रग हैज अ मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एलोपेसिया, स्किन अल्सरेशन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एग्रानुलोसाइटोसिस, एप्लास्टिक एनीमिया, राइट, इम्यूनिटी, डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, म्यूकोसाइटिस, है ना, अल्सरेशन, एजोस्पर्मिया, इनहिबिशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन. तो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट, कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग. तो एंटी कैंसर ड्रग के एडवर्स इफेक्ट समझना चाहिए. रीजन क्या है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. विल सी द नेक्स्ट पार्ट. राइट, it means you cannot kill the cancer cell without affecting the normal cell. What it means? It means you cannot kill the cancer cell without affecting the normal cell. This line is very important. You cannot kill the cancer cell without affecting the normal cell, because cancer cell will like exactly to a normal cell and there is only little difference. डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल सेल में कैंसर सेल में एक ही डिफरेंस होता है कि नॉर्मल सेल का कुछ फंक्शन होता है, कैंसर सेल का कोई फंक्शन नहीं होता. ठीक है. एंड नॉर्मल सेल में मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होता है, कैंसर सेल में मेटाबॉलिज्म थोड़ा ज्यादा होता है. तो देयर इज ओनली टू डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल. फर्स्ट इज अ नॉर्मल सेल हैज अ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड स्पेसिफिक फंक्शन, बट कैंसर सेल हैज अ increased abnormal metabolism and loss of function. That's it. There is only these two difference. Okay. और ये difference इतना ही होने के कारण anti cancer drugs they are not a specific in their action. Anti cancer drug they are not a specific in their action, and that's why anti cancer drug has a lot of adverse effect. ठीक है, lot of adverse effect, right? देखो, also in case of
आल्सो अनदर रीजन, आल्सो इन केस ऑफ अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो आपके बॉडी के इम्यून सेल से व्हेन यू विल गेट अ इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जैसे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो आपकी ह्यूमन के इम्यूनिटी सेल जो है जैसे WBCs हो रहे, जैसे एंटीबॉडीज है, तो इन केस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, इन केस ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन, योर बॉडी विल आल्सो हेल्प टू रिकवर द इन्फेक्शन, योर बॉडी विल आल्सो हेल्प टू रिकवर द इन्फेक्शन बाय यूजिंग इम्यूनो सेल्स, है ना. बट इन केस ऑफ कैंसरस सेल, योर बॉडी सेल विल नॉट हेल्प यू, योर बॉडी सेल विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज कैंसर क्या है, आपके खुद के बॉडी की सेल है, तो खुद की बॉडी की सेल को खुद की बॉडी के सेल कैसे मारेंगे, राइट. अगर इन्फेक्शन हो गया तो फॉरेन बॉडी आ गया, आपका इन्फेक्शन हो गया तो बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए आपके बॉडी के इम्यूनिटी सेल जो थे, टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ये सब जाके माइक्रोबियल सेल को किल करेंगे. बट कैंसर में क्या होता है कि कैंसर आपका खुद का ही सेल है, तो न्यूट्रोफिल्स जाके कैंसर को कैसे मारेंगे, नहीं मारेंगे. तो दैट्स व्हाई, okay, so in the infectious disease your body will also help you to recover fast, but in cancer cell, in case of cancer, your body will not help you, because you know, your body will not help you. So in case of bacterial infection, your neutrophils will go, your basophils will go, your eosinophil, your lymphocytes will go at an infection site, they will catch the infection, they will engulf the bacteria and they will destroy it. That is a phagocytosis. But in case of cancer cell, cancer is nothing but your own cell, so your own cell cannot be destroyed by your own body cell, so that's why here is also one lacking. Okay, now immunity. Okay, then but in case of cancer cell, body will not support you because anti-cancer drug acts on by its defense mechanism. एक तो एंटी कैंसर ड्रग क्या करते हैं, सबसे पहले कि आपके इम्यूनो सेल को मार देते हैं, कैसे, WBC को मार देगा, सो इम्यूनिटी वैसे डाउन हो गया आपका. सो एंटी कैंसर ड्रग हैव नॉट एनी स्पेसिफिसिटी, एंटी कैंसर ड्रग्स दे आर नॉट हैविंग specificity and they have high tissue toxicity, they will have high tissue toxicity, and one cannot use high dose of anti-cancer drug to destroy the cancer cell. So cancer treatment के limitations है, cancer treatment के limitations है, so we have a limitation in the cancer treatment because first limitation is nothing but the human cell, human normal cell and cancerous cell look like the same, there is not a clear difference. Second thing, okay, so most of the anti-cancer drug destroy the cancer cell where there is active growth, and also at the same time they will destroy your normal body cell where there is active growth, like your hair follicle, mucous membrane, your skin, your skin, then your bone marrow, RBC, WBC, platelet, then also mucous membrane, then also sperms, then also ovum. So anti-cancer drug will have adverse effect, right? So anti-cancer drug will have definitely adverse effect. कौन सा adverse effect है भाई? So remember, a cancer cell can also develop a resistance to the anti-cancer drug, and that's why anti-cancer treatment is a tedious treatment. Anti-cancer treatment easy नहीं होता है, anti-cancer treatment इतना easy नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि anti-cancer drug एक तो selectively नहीं होते, selectively kill नहीं करते anti-cancer drug cancer cell को. तो anti-cancer drug और cytotoxic drug और anti-malignant drug, they will not kill cancers specifically. Then they have adverse effect and they are having tissue toxicity, they are having highly toxic drugs, they are having highly tissue toxicity, and then cancer cell will develop a resistance to the anti-cancer drug. Because of that, cancer therapy is not easy, cancer therapy is a tedious task, right? I hope I am understanding, I hope you are understanding, I hope I am audible to you clearly, right? चलो देख लेते हैं next part. So I hope I am audible to you. Are you able to see the screen? आपको साउंड आ रहा है प्रॉपरली, समझ में आ रहा है? Yes. Now first you have to understand this cell cycle. तो अपन ने cell cycle already देखा है when we was discussing about the cell. So again cell cycle. Now cell cycle means what? It is a time gap. It is a time gap. Cell cycle is nothing but the time gap between the two cell division. दो cell डिवीजन जब होता है उसमें का जो टाइम है, इट इज अ टाइम गैप बिटवीन टू सेल डिवीजन, इट इज अ टाइम गैप बिटवीन टू सेल डिवीजन नोन एज अ सेल साइकिल. नाउ सेल साइकिल हैज अ डिफरेंट पेजेस, सेल साइकिल हैज अ डिफरेंट पेजेस, है ना. सो सेल साइकिल हैज अ मोस्टली दो फेज, सेल साइकिल का दो फेज होता है. देयर आर टू फेजेस ऑफ सेल साइकिल, टू फेज ऑफ सेल साइकिल. फर्स्ट फेज इज नथिंग बट द इंटरफेज एंड सेकंड फेज इज नथिंग बट द माइटोसिस.
है ना. सेल डिवीजन का दो फेज होता है. फर्स्ट इज अ इंटरफेज, सेकंड वन इज अ माइटोटिक फेज. नाउ इंटरफेज हैज अ 3 phases. इंटरफेज also has a 3 distinct phases. So इंटरफेज में होता है G1 फेज. Interphase, in that you have G1 phase, S phase. Okay, in the interphase you have 3 phases: G1 phase, S phase and G2 phase. है ना. तो देखो cell division is done in a 2 phases. First phase is interphase and second is a mitotic phase. So interphase has a 3 subtypes, 3 sub phases, 3 different stages. Stage 1 होता है G1. G1 is also known as a gap 1 और pre-synthetic gap 1. G1 is also known as a pre-synthetic gap 1. तो जब सेल प्रिपेयर करता है खुद को डिवीजन के लिए, then cell will prepare itself for division. So in the growth, in the G1 phase, G1 phase is known as a gap 1 or pre-synthetic gap. So in this, cell will prepare itself for सिंथेसिस ऑफ डीएनए. जो भी डीएनए सिंथेसिस के लिए, मतलब जो भी डीएनए सिंथेसिस के लिए जो भी मटेरियल लग रहा है, जैसे डीएनए के लिए आपको लगता है न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए प्रिपरेशन के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए लगता है आपको, सो यू नीड अ न्यूक्लियोटाइड्स, यू नीड अ प्यूरिन बेसिस, यू नीड अ एंजाइम्स, यू नीड अ एटीपीज, यू नीड अ इंटरमीडिएट्स, यू नीड अ हार्मोन्स, यू नीड अ एंजाइम्स. सो दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द G1 फेज. तो G1 फेज मतलब क्या, इंटरफेज का पहला स्टेप होता है G1 फेज. And in this, cell will prepare for DNA synthesis. So whatever is required for the DNA synthesis will be accumulated in the cell, and that's why cell grow and cell volume will increase in this one. Then what is a CS phase? S phase मतलब here S phase is nothing but the synthetic phase. S phase is the synthetic phase. और synthetic किसका होता है? Synthesis of DNA. Synthesis of DNA that occurs in the S phase. Synthesis of DNA that occurs in the S phase. S phase में क्या होगा? Synthesis होगा किसका? DNA का. So in the S phase there is synthesis of DNA and that's why it is known as a synthetic phase. S phase is known as a synthetic phase, है ना, synthetic phase. तो इसमें DNA synthesis होगा, DNA का replication होगा, DNA will be replicated in the S phase. और इसके ऊपर GPAT 2023-24 दोनों साल क्वेश्चन आ चुका है ना. इसके ऊपर GPAT 2023-24 इसमें क्वेश्चन आ चुका है. लास्ट ईयर में GPAT 2024 में क्वेश्चन आ चुका है. डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, क्वेश्चन क्या था भाई? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए दैट ऑकर्स इन द व्हिच फेज ऑफ सेल साइकिल? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए दैट ऑकर्स इन द सिंथेटिक फेज ऑफ डीएनए. ओके, ये क्वेश्चन GPAT में आ चुका है. ओके, तो यहाँ पे ही ये क्वेश्चन कवर होता है, राइट. सो डीएनए विल बी डुप्लीकेटेड, डीएनए विल बी सिंथेसाइज्ड इन द S phase. So that's why synthetic phase. Okay, after the synthesis of DNA and synthesis of required component for the cell growth. Okay, तो G2 फेज है ना. पहले तो क्या है, सेल G1 फेज था, है ना. G1 फेज, इसमें प्री सिंथेटिक फेज नोन एज अ प्री सिंथेटिक गैप और प्री सिंथेटिक फेज. इन दिस सेल विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द DNA synthesis. Now S phase means synthesis of DNA. ठीक है. Not all cell will go into the S phase. सभी सेल S phase में नहीं जाएंगे, सभी सेल S phase में नहीं जाएंगे. तो यहाँ पे क्या है कि कुछ सेल जो होते हैं G1 से G0 में जाते हैं. सम सेल्स विल गो इनटू G1 टू G0. सभी सेल है ना, सभी सेल जो आपके सेल्स है ना, बिफोर द सेल डिवीजन दे विल नॉट go directly into the, है ना. So cell will prepare itself for the synthesis of DNA in the cell phase 1, that is known as a G1 phase. G1 phase, okay, known as a interphase का एक सब टाइप होता है. इंटरफेज का एक फर्स्ट स्टेप होता है G1 phase. So in the G1 phase cell will prepare itself for the DNA synthesis. So it is known as a pre-synthetic phase. इसको क्या बोलते हैं अपन? Pre-synthetic phase or known as a pre-synthetic gap. Pre-synthetic phase or pre-synthetic gap. And some cell will go directly into the this S phase. Some cell will go into the S phase, but all cell will not go. So some cell will go into S phase, some cell will go into G0 phase. Some cell will go into G0 phase.
G0. G0 फेज में कुछ सेल जाएंगे. G0 phase is known as a resting phase. G0 phase क्या बोलते हैं? Resting phase. And some cell will go into the S phase. S phase मतलब क्या? Synthesis of DNA. In the S phase there is a synthesis of DNA. There is synthesis of DNA. There is a duplication of DNA. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है GPAT में, याद रखना है. Now after the synthesis, so whatever component for cell division is required, so that will be synthesized in the S phase. Okay. And most of the anti-cancer drug will act on S phase. जैसे कौन से ड्रग होते हैं यहाँ पे? एंटीमेटाबोलाइट. एंटीमेटाबोलाइट ड्रग्स विल एक्ट ऑन यस फेज. एंटीमेटाबोलाइट ड्रग जो है ना वो यस फेज के ऊपर एक्ट होते हैं, यस फेज के ऊपर एक्ट होते हैं, राइट. सो इन द आफ्टर द यस फेज सेल विल एंटर इनटू द G2 फेज. आफ्टर द यस फेज सेल विल एंटर इनटू द G2 फेज. G2 फेज क्या है भाई? G2 फेज इज नथिंग बट जहाँ पे यस फेज में जो भी सिंथेसाइज हो चुका है, वट एवर इज सिंथेसाइज्ड इन द यस फेज, यहाँ पे डीएनए वगैरह जो भी एंजाइम्स जो भी रिक्वायरमेंट है जो सिंथेसिस हो चुका है वो करेक्ट किया जाएगा. Whether it is correctly synthesized or not, whether in a S phase component for cell division is correctly synthesized or not, that will be cross checked over here, that will be corrected over here. तो अगर कोई फॉल्टी डीएनए बना है तो फॉल्टी डीएनए को क्या होगा? डिस्ट्रॉय किया जाएगा. अगर फॉल्टी डीएनए बना है तो फॉल्टी डीएनए डिस्ट्रॉय किया जाएगा. अगर सही को सब कुछ सही बना है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं. ये कुछ गलत बना है तो डिस्ट्रॉय किया जाएगा. तो यहाँ पे चेक पॉइंट होता है. सो G2 phase known as a gap 2. G2 phase known as a gap 2. So G1, yes and G2. G1, yes and G2. They are the part of interphase. Now main आता है, दूसरा फेज आता है ना. तो पहला फेज क्या है आपका? इंटरफेज. एंड दूसरा फेज क्या है आपका? माइटोसिस. So second phase is the mitosis. Now in the mitosis we have seen in the mitosis there are different phases like prophase, metaphase, anaphase, telophase, right? है ना. प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है, और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है. सो इन द माइटोसिस यू आर डिफरेंट फेजेस लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड लास्टली साइटोकाइनेसिस. वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द सेल चैप्टर, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल, राइट. तो सेल डिवीजन नॉर्मली ऐसे होता है. सेल डिवीजन नॉर्मली ऐसे होता है. नाउ इफ देयर इज एनी एरर, any change, any error, if there is any change or if there is any fault in the cell division that result in the cancer. अगर सेल डिवीजन में कोई एरर आता है तो वहाँ पे कैंसर होता है. if there is a damage to DNA, if there is a mutation in the DNA, है ना. डीएनए अगर कुछ चेंज होता है, डीएनए अगर कुछ फॉल्ट होता है डीएनए में तो क्या होगा? कैंसर होगा. सेल साइकिल you have to understand, right? Cell cycle is very important. I would like to explain you again in the short way. एक शॉर्ट में बोलता हूँ आपको. सेल साइकिल मीन्स व्हाट? सेल साइकिल इज नथिंग बट द टाइम गैप बिटवीन द डिवीजन ऑफ टू सेल्स. सेल साइकिल हैज टू फेजेस. फर्स्ट वन इज अ इंटरफेज एंड सेकंड वन इज अ mitotic phase. Okay, in the interphase you have three phases. That is a G1 phase. G1 phase is nothing but the pre-synthetic phase. G1 phase is nothing but the pre-synthetic phase. और इसमें in this cell will prepare itself for the DNA synthesis. Whatever required for the DNA synthesis that will be prepared by cell in the G1 phase, known as a gap 1 or known as a pre-synthetic gap. ठीक है. Second stage होता है. Second stage is nothing but the synthetic stage or ES stage, and DNA is duplicated. DNA synthesis occurs in the second stage. Okay, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 2 बार. 2 times question has been asked in the GPAT. So synthetic phase is the DNA synthesis. After that, whatever is DNA synthesized, whether it is correct or not, that will be corrected in the G2 phase, known as a pre-synthetic gap 2. Okay. After that, cell is ready for the mitosis. So in the mitosis, you have different phases like prophase, metaphase, anaphase, telophase. और बाद में cytokinesis, मतलब division of cytoplasm. We have seen. So that's how two daughter cells are formed. That's how two daughter cells are formed. Any error, any problem in this will cause cancer. Or any damage in the DNA also leads to cancer, right? So this you have to understand. I hope I am audible to you and you are able to understand this. समझ रहा है आपको? फटाफट बोलो, है ना. You have to answer, है ना. I hope I am audible to you and are you able to see the screen, है ना. समझ रहा है क्या सबको? कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है ना.
ते पोट्टे हो सगळ्यांना समजतं का? Yes. Now, what are the different anti-cancer drugs? How they act? What are the different anti-cancer drugs? How they will act? So, okay. So we have seen the different phase of cell cycle. जैसे आपका है ना सेल साइकिल के कितना फेज होता है? एक जीवन फेज होता है ना? मोस्ट ऑफ द सेल विल गो इन द G0 फेज. G0 फेज क्या होता है? रेस्टिंग फेज है ना. लेकिन कुछ साइकिल जो सेल डिवीजन के लिए रेडी है, दोज काइंड ऑफ सेल विल गो इनटू द यस फेज. यस फेज क्या होता है? सिंथेटिक फेज. उसके बाद में पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन G2 फेज, बाद में माइटोसिस. राइट नाउ देखो, मोस्ट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग विल अफेक्ट दिस स्टेजेस है ना. तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेल है ना, देयर आर टू टाइप ऑफ ड्रग्स. मोस्टली एंटी कैंसर ड्रग्स आर ऑफ टू टाइप. दो टाइप के कौन से? दोज ड्रग विच विल अफेक्ट द वन स्टेज ऑफ सेल साइकिल. कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो सेल साइकिल के कौन सा भी स्टेज को अफेक्ट करते हैं. ओके, कुछ ड्रग सेल साइकिल के एक पर्टिकुलर स्टेप को अफेक्ट करते हैं. Some drugs are known as a cell cycle specific drug. So those drugs which affect any stage of cell cycle known as a cell cycle specific drug. Okay, cell cycle specific drug. And those drugs which will not affect a particular cycle of cell known as a non cell cycle specific. ठीक है ना. जो सेल साइकिल में अफेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सम ड्रग्स. सो फॉर एग्जांपल इन द यस फेज दिस ड्रग्स दे विल एक्ट है ना. सिंथेटिक फेज में ये ड्रग्स अफेक्ट करते हैं, सिंथेटिक फेज में ये ड्रग्स अफेक्ट करेंगे है ना. जैसे माइटोटिक फेज में ये ड्रग अफेक्ट करेंगे, जैसे G2 फेज में ये ड्रग अफेक्ट करेगा. तो ये जो ड्रग है इनको क्या बोलेंगे अपन? सेल साइकिल स्पेसिफिक. सेल साइकिल स्पेसिफिक. एंड सम ड्रग आर नॉट अफेक्टिंग द स्पेसिफिक साइकिल नोन एज अ नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग. राइट, नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग. तो देखो, ओके, सो G1 फेज एंड देन यस फेज. सो यस फेज मोस्ट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग नोन एज अ एंटी मेटाबोलाइट. क्या बोलते हैं उसको अपन? known as the anti-metabolite. Anti-metabolite. तो एंटी-मेटाबोलाइट ड्रग known as a yes phase specific. इसके ऊपर दो बार क्वेश्चन आ चुका है. एंटी-मेटाबोलाइट ड्रग दे आर द yes phase specific because they will act on a yes phase. तो यहाँ पे यहाँ पे है ना एंटी-मेटाबोलाइट जो है वो यस फेज जो है सेल साइकिल का उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज यस फेज स्पेसिफिक ड्रग और सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग. सो इन दिस सिट्राबिन, 6 मार्करटोपिन, थायोगुआनिन, 5-fluorouracil, methotrexate, then hydroxyurea, irinotecan and etoposide. So these are the drugs which blocks the synthesis of DNA by any manner. है ना. कुछ ड्रग क्या करते हैं यहाँ पे? सिंथेसिस डीएनए का इनहिबिट करते हैं. क्यों करते हैं? Some drugs are acting as alkylating agent. Some drug is acting as inhibiting the DNA topoisomerase, but they will affect the yes phase of cell. So that's why cell cycle specific, right? So these drugs are cell cycle specific. Bleomycin क्या करेगा? G2 phase में अटैक करेगा. That's why bleomycin is also cell cycle specific. ठीक है. Vincristine, vinblastine and paclitaxel. तो ये क्या करेंगे? ये जो प्लांट अल्कलॉइड्स है, प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट. All these are the plant products. So they will affect the EM phase and they will inhibit the mitosis. They will prevent the mitosis. That's why they are known as the cell cycle specific drugs. But some drugs they will affect differently. They are known as a non-cell cycle specific. So in that alkylating agent are there, anti-tumor antibiotics are there, and nitrosurea or nitrogen mustards are there. Right? Okay. So you might have understood what do you mean by cell cycle specific drug, cell cycle non-specific drug. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. विच ड्रग इज अ सेल साइकिल स्पेसिफिक, विच ड्रग इज अ नॉट सेल साइकिल स्पेसिफिक. तो आपको टर्म समझना है यहाँ पे. सेल साइकिल स्पेसिफिक मतलब क्या है, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या है. ठीक है. तो सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग मतलब क्या है? तो इफ ड्रग इज अफेक्टिंग द कैंसर सेल, इफ ड्रग इज किलिंग द कैंसर सेल, इफ ड्रग इज एक्टिंग ऑन अ कैंसर सेल इन अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ सेल साइकिल. अगर कोई एंटी कैंसर ड्रग पर्टिकुलर स्टेज जो है सेल साइकिल का उसमें उसके ऊपर ही उसका मैकेनिज्म है, उसके ऊपर ही वो एक्ट करता है, तो उसको बोलेंगे अपन सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग. ठीक है. तो जैसे कुछ ड्रग क्या है कि कुछ ड्रग जैसे फॉर एग्जांपल these drugs they will act on a yes phase. They will mostly exert their anti-cancer effect by inhibiting the DNA synthesis, by inhibiting the DNA synthesis or by inhibiting the DNA
post replication modification. So it's like cytarabine, 6-markaptopurine, thioguanine, 5-fluorouracil, methotrexate, then hydroxyurea, then irinotecan, etoposide. So they are known as a S phase specific or S phase specific drug. Some drugs they will act on a G2 phase known as a bleomycin. So bleomycin is a cell cycle specific drug. Okay. Some drug will act on a mitotic phase. यहाँ पे M phase के ऊपर act करेंगे जैसे vincristine, vinblastine, paclitaxel. So all these are known as cell cycle specific drug. देखो cell cycle specific drug, and some drug are known as a non cell cycle specific. क्यों? Because they will not act on a particular cell cycle, they will act on a all cell cycle, है ना. So known as alkylating agent. इसमें आता है alkylating agent. So alkylating agent में examples cyclophosphamide, cisplatin, procarbazine. Anti tumor antibiotics इसमें सब है ना, इसमें सब anthracyclines है, doxorubicin, daunorubicin, actinomycin D, है ना, nitrosourea. So they are also non cell cycle specific. I hope you are getting my points. very important. GPAT में इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, है ना. गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में इतना डीप में नहीं पूछते, लेकिन बाकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. सेल साइकिल स्पेसिफिक, नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग. ठीक है. So I will explain you the same term. So carcinoma of epithelial cell, cancer of epithelial cell, है ना. epithelial cell का कैंसर जो है उसको अपन क्या बोलेंगे? कार्सिनोमा. Cancer of epithelial cell is known as a carcinoma, and cancer of tissues or non-epithelial cell is known as sarcoma. So epithelial cell को कार्सिनोमा बोलते हैं, and cancer of tissue is known as sarcoma. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है GPAT में. ओके, इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट इज मीन बाय कार्सिनोमा? कैंसर ऑफ epithelial cell. व्हाट इज मीन बाय sarcoma? Sarcoma means cancer of non-epithelial cell means tissue. Now we can distinguish the cancer cell from normal cell with the respective of. मतलब कैंसर सेल और नॉर्मल सेल का डिफरेंस क्या होता है? So these are the different differentiation points. So how you can differentiate between cancer cell and normal cell? What are the different points? First point is in the cancer there is a autonomous or autonomous मतलब खुद के मन से ही वो ग्रो करता है. There is a autonomous uncontrolled proliferation in the cancer cell. So cancer cell will differ from normal cell in this aspect known as the autonomous uncontrolled proliferation. First, second is nothing but the differentiation and loss of cell function. Second है ना. Secondly देखो कैंसर सेल क्या होता है? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ सेल. मतलब नॉर्मल सेल क्या है? नॉर्मल सेल में क्या है? नॉर्मल सेल में भी ग्रोथ होता है, नॉर्मल सेल में भी डिवीजन होता है, लेकिन उसका फंक्शन लॉस नहीं होता. बट कैंसर सेल में क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन. ठीक है. थर्ड पॉइंट, इन्वेजिवनेस एंड मेटास्टेसिस. इन्वेजिवनेस एंड मेटास्टेसिस. इन्वेजिवनेस एंड मेटास्टेसिस. इन्वेजिवनेस मतलब क्या? इन्वेजिवनेस मतलब क्या? इन्वेजिवनेस मतलब क्या? एक सेल कैंसर से अगर वो सेल दूसरे जगह पे जाके और कैंसर करता है उसको बोलते हैं इन्वेजिवनेस. सो इफ ए कैंसर सेल्स causes the cancer of site of origin to the another site known as invasiveness and metastasis. Movement of cancerous cell within the body from one site of development to the another site known as a metastasis. तो कैंसर सेल का डिफरेंस क्या है? नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल will have a difference in this. So cancer cell are nothing but they are having autonomous uncontrolled proliferation. Cancer cells are dedifferentiation and loss of function. Cancer cells are having invasiveness and metastasis. These 3 points are the important. That is the differentiation points from cancer and normal cell. Otherwise, normally cell will look like a normal cancer cell. Cancer cell will look like a normal cell. यही difference है. Otherwise बाकी सब same होता है. ठीक है. Now cell cycle specific drug जो है वही देखो. Normal cell cycle or proliferation of cell. Normal cell cycle or proliferation of cell also known as a programmed DNA replication. Normal cell cycle का क्या बोलते हैं अपन? Normal cell cycle कब होता है? When there is a degeneration of tissue, when there is a cells are required for body, so at that time only normal cell cycle will be there, normal proliferation will be there, known as a programmed DNA replication. So programmed DNA replication ये किससे होता है? So programmed DNA replication, right? So programmed DNA replication, the mechanism for replication or mechanism for cell division is same for all type of cell.
और इसमें क्या होता है, देर आर डिफरेंट 5 फेजेस. कौन से फेजेस देखे आपने, ऑलरेडी देखे. देर आर डिफरेंट 5 फेजेस. So first one is nothing but the G0 phase. G0 phase is known as a resting phase or gap zero. G0 phase मतलब क्या, resting phase और gap zero. So in this case cell is not replicating, so it is a non-proliferative phase, है ना. Then उसके बाद में आता है G1 phase. G1 phase मतलब क्या है, G1 phase is also known as the pre-synthetic or gap one. So individual cell will prepare itself for the DNA synthesis. We have seen in the previous slide. Okay, then G2 phase, G1 phase हो गया. उसके बाद में S phase आएगा, synthetic phase. S phase means लगा, S phase means synthetic phase. So actual synthesis of DNA. और इसके ऊपर कम से कम 2-3 बार GPAT में क्वेश्चन आ चुका है. GPAT में क्वेश्चन आ चुका है. GPAT. Synthesis of DNA or duplication of DNA or synthesis of DNA occurs in the which phase of cell cycle? So it is a synthetic phase. GPAT 2014 में भी आया, 24 में भी आ चुका है. राइट, तो देखो यस फेज एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ डीएनए. देन G2 फेज. G2 फेज मतलब क्या आता है, G2 फेज इज नथिंग बट द पोस्ट सिंथेटिक गैप, है ना, पोस्ट सिंथेटिक गैप और गैप 2. सो हियर एक्यूरेसी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज डिटरमाइंड, कि जो सिंथेटिक फेज में जो डीएनए बना है वो करेक्ट बना है क्या नहीं, वो चेक करेंगे. इफ एरर्स आर देयर, एरर्स आर करेक्टेड, एंड इफ यू कैन नॉट करेक्ट एरर, अगर एरर्स आता है डीएनए में तो ये डीएनए एरर्स करेक्ट किए जाएंगे. If errors are not correctable, then DNA will be destroyed. So that is known as G2 gap or post synthetic gap, है ना. तो G1 phase resting phase, G1 phase pre synthetic और gap 1, S phase मतलब synthetic phase, G2 phase मतलब post synthetic gap और G2 phase मतलब post synthetic और gap 2, right. So then next आता है mitosis. देख सकता है mitosis. Mitosis मतलब क्या, M phase. Here replication of DNA chromosomes are separated. So replicated DNA chromosomes, replication तो कहाँ पे होगा, सिंथेटिक फेज में, लेकिन यहाँ पे replicated chromosomes they are attached to each other. तो माइटोटिक फेज में क्या है, जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है वो एक में के साथ में अटैच होते हैं. एक्स जैसा व्यू आता है, आपने सेल में देखा है, वी ऑलरेडी सीन इन द सेल. सो दैट इज नाउ सेपरेटेड इनटू 2 न्यूक्लियाई एंड 2 डॉटर सेल ऑफ G1, है ना. तो इन दिस माइटोटिक phase or in this mitosis phase you will get a 2 cells, 2 daughter cells, है ना. और जो सेल डेड सेल है, so those cells which are a dead cell in the G1 they may re-enter into the cell cycle. So that is known as a cell cycle or that is known as a normal cell cycle, and any changes in this, any defect in this leads to cancer, है ना. So देखो in the cancer DNA synthesis, so actually ये एंटी कैंसर ड्रग, है ना, एंटी कैंसर ड्रग जो है वो एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन. यहाँ पे सेल भी मालूम होना चाहिए आपको, सेल का फिजियोलॉजी मालूम होना चाहिए, प्लस इसके एडिशन में आपको डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड चैप्टर जो है बायोकेमिस्ट्री का, दैट शुड बी यू शुड नो द न्यूक्लिक एसिड चैप्टर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज द सेल बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एंटी कैंसर ड्रग. तो अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए आपको पहले न्यूक्लिक एसिड भी समझना है और सेल भी समझना है, तब जाके एंटी कैंसर ड्रग समझेंगे, राइट. सो यहाँ पे अभी देयर इज अ वन while in the synthesis in the synthetic phase, जब S phase में क्या होता है, S phase में there is a synthesis of DNA, S phase. So during the replication, during the synthesis of DNA, what happens? So DNA is synthesized, DNA is replicated, and after replication of DNA, so there is one enzyme known as the topoisomerase. There is a role of this enzyme topoisomerase 1 and 2. So they have an important role in the DNA replication. So we'll see when we'll see nucleic acid. When we'll see the replication of DNA, at that time you will come to know what is the role. But यहाँ पे मैं रोल शॉर्ट में बोलता हूँ. यहाँ पे the cell cycle transition between G1 and S, जब सेल का ट्रांजिशन होता है, सेल साइकिल ट्रांजिशन बिटवीन G1 and S, मतलब G1 से जब S फेज में जाता है सेल, एंड G फेज से तो M फेज में जाता है, G2 फेज से M फेज में जाता है. सो ट्रांजिशन बिटवीन G1 and S and G2 and M. Now it is regulated greatly और proper cell division, है ना. जो सेल साइकिल ट्रांजिशन है, सेल G1 फेज से S फेज में जाएगा और G2 फेज से M फेज में जाएगा. ये जो ट्रांजिशन है that is regulated very precisely, that regulated greatly for proper cell division, and minimum error checkpoints are determined by one protein known as a kinase, cyclidine dependent kinase. मतलब सिंपली क्या है, जब सेल डिवीजन होता है, जब
G1 फेज से आपका सेल G1 फेज से आपका सेल S फेज में जाता है, तब सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है, राइट। तो जब वो है ना, वो रेगुलेट किया जाता है, बॉडी के कुछ फैक्टर्स होते हैं, बॉडी के कुछ एंजाइम्स होते हैं, दे रेगुलेट द प्रॉपर ग्रेटली प्रॉपर सेल डिवीजन, है ना। जैसे साइक्लिडिन डिपेंडेंट काइनेज, ये काइनेज एंजाइम होता है, प्रोटीन काइनेज, सो दैट विल रेगुलेट द ट्रांजिशन बिटवीन G1 and S and G2 and M phase, okay, properly, and if any errors are there, अगर सेल डिवीजन मतलब सेल G1 से S में जा रहा है, S से G2 में जा रहा है, G2 से M में जा रहा है, तो इसमें कुछ एरर होता है, तो कौन चेक करता है, कौन करेक्ट करता है? काइनेज डिपेंडेंट काइनेज, that is a cyclidine dependent kinase, right? So that is a greatly regulated topoisomerase 1 and 2 as well as kinase. Topoisomerase 1 and 2 and protein kinase that will regulate the cell cycle transition, right? Now progress of cell cycle depends on the balance between positive and negative regulatory forces. देखो सेल साइकिल का प्रोग्रेस, सेल डिवीजन का प्रोग्रेस, सेल साइकिल का प्रोग्रेस, सेल डिवीजन का प्रोग्रेस किसके ऊपर डिपेंड है भाई? सो प्रोग्रेस ऑफ सेल साइकिल डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर, वहां पे दो फैक्टर होते हैं, वन होता है पॉजिटिव फैक्टर एंड देयर इज अ नेगेटिव फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर मतलब क्या है? पॉजिटिव फैक्टर मतलब these factors are responsible for the increase in the cell division. Positive factor responsible for the increase in the cell division. Negative factors are responsible for the decrease in the cell division. So cell cycle progress depends on the balance between positive and negative factors. Negative regulatory forces. Factors बोलो और negative forces बोलो. Now what are the positive factors? Positive factor कौन है भाई? Positive factor है cyclidine dependent kinase. Positive factor is a cyclidine dependent kinase. देन पॉजिटिव फैक्टर और कौन सा होता है? पॉजिटिव फैक्टर बहुत सारे हैं, और जैसे मैंने अपने लास्ट टाइम में देखा है ना, सेल में देखा है, जैसे आपका आरबीसी के लिए पॉजिटिव फैक्टर कौन है? इरिथ्रोपोएटिन। डब्ल्यूबीसी के लिए फैक्टर कौन सा है ना, डब्ल्यूबीसी के लिए फैक्टर होता है आपका, है ना, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। सो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है ना, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। सो दीज आर द पॉजिटिव फैक्टर्स, बट मेन इंपॉर्टेंट इज साइक्लिडिन काइनेज, मेन इंपॉर्टेंट इज साइक्लिडिन डिपेंडेंट काइनेज. That is a positive factor, so it will increase the cell growth. Okay, negative forces कौन है? Negative forces include tumor suppressor gene, ये tumor suppressor gene. So positive factor, main important positive factor for cell division is a cyclidine dependent kinase, that is a CDK, normal CDK, and negative force for cell division. Positive regulatory force will increase the cell division, negative regulatory force will decrease the cell division. Negative regulatory force कौन है भाई? यहाँ पे है tumor suppressor gene. तो tumor suppressor gene also known as the p53 gene. And if this gene is, ये जो जीन है इसका बॉडी में अगर डेफिशिएंसी होता है, if there is a deficiency or deficient tumor necrosis, tumor suppressor gene, then that leads to cancer. इसका डेफिशिएंसी हुआ है तो आपका कैंसर फिक्स है, इसका डेफिशिएंसी हुआ था कैंसर फिक्स है, या फिर इसका एक्टिविटी ज्यादा हो गया. सो इफ देयर इज इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सेल, है ना, if there is increased activity of cyclidine dependent kinase, and if there is a decreased activity of tumor necrosis, if there is decreased activity of tumor suppressor gene, है ना, cyclidine dependent kinase ये पॉजिटिव रेगुलेटरी फैक्टर है, उसका अगर बढ़ गया हो तो कैंसर होगा, है ना. ट्यूमर नेक्रोसिस ट्यूमर सप्रेसर जीन अगर कम हो गया तो आपका कैंसर हो जाएगा. ठीक है. सो दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स एंड कैंसर डिपेंड ऑन दिस ओनली. सो इफ देयर इज अ इंक्रीज्ड पॉजिटिव फैक्टर, so you can develop a cancer. If there is a decreased negative factor, you can develop cancer. तो पॉजिटिव फैक्टर कौन है? साइक्लिडीन डिपेंडेंट काइनेज. नेगेटिव फैक्टर कौन है? ट्यूमर सप्रेसर जीन. नेक्रोसिस जा रहा है. ट्यूमर सप्रेसर जीन इज अ नेगेटिव फैक्टर एंड पॉजिटिव फैक्टर इज अ साइक्लिडीन डिपेंडेंट काइनेज. साइक्लिडीन डिपेंडेंट काइनेज इज अ पॉजिटिव फैक्टर, है ना, ये पॉजिटिव फैक्टर है एंड ये नेगेटिव फैक्टर है. So balance between these two is very very important for progress of cell growth. If there is imbalance between this, imbalance अगर हो गया इसके बीच में, मतलब साइक्लिडीन डिपेंडेंट काइनेज का एक्टिविटी बढ़ गया या फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन का एक्टिविटी कम हो गया, तो क्या होगा भाई? आपको कैंसर होगा. राइट. सो यू माइट हैव अंडरस्टूड. समझ रहे हैं आपको? यस और नो? यू राइट इन अ कमेंट बॉक्स. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स.
व्हेन देयर इज अ डैमेज टू डीएनए, अगर डैमेज हो गया डीएनए को, व्हेन देयर इज डैमेज टू डीएनए, इफ देयर इज डैमेज टू डीएनए, तो इनिबिटरी फैक्टर, व्हेन देयर इज अ डैमेज टू डीएनए और इफ देयर इज अ फॉल्टी सिंथेसिस ऑफ डीएनए, अगर डीएनए में कोई डैमेज होता है, इफ डीएनए इज अ फॉल्टी सिंथेसाइज्ड, देन इनिबिटर फैक्टर, इनिबिटर्स नॉर्मली स्टॉप द सेल साइकिल। अगर आपके डीएनए में कोई फॉल्ट आता है, डीएनए फॉल्टी बनता है या फिर डैमेज होता है, तो आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है ना, वो सेल साइकिल को तुरंत ही रोक देगा, तो इट विल स्टॉप द सेल साइकिल। ओके, एंड देन देयर इज अ डीएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर करने का ट्राई करेगा। इफ रिपेयर इज पॉसिबल, देन डीएनए विल बी रिपेयर्ड। इफ डीएनए रिपेयर इज नॉट पॉसिबल, then it is a, okay, if DNA is repair, if DNA repair is possible, then it is repaired, and if DNA repair is not possible, then cell will undergo apoptosis, apoptosis मतलब क्या, we have already seen in the cell cycle, in the cell, तो apoptosis means program cell death। अगर कोई भी डीएनए में दिक्कत आता है तो वो करेक्ट किया जाएगा, अगर करेक्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर वो सेल मर जाएगा, राइट। So now apoptosis is very important. Apoptosis will prevent the organism from abnormal cell. You know, apoptosis is very important. Apoptosis will prevent the organism from the development of abnormal cell and remove the abnormal cell during the development and deep differentiation. So therefore it acts as a first line defense against the mutation. तो देखो, जब भी आपके डीएनए को डैमेज होता है, जैसे यूवी लाइट में गए आप तो डीएनए डैमेज होगा, तो डीएनए डैमेज होगा तो सेल वहां पे मर जाएगा। क्यों मरता है सेल? बिकॉज ऑफ द एपोप्टोसिस, बिकॉज ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर है ना जीन, राइट। एंड रिन्यूअल ऑफ सेल विद एबनॉर्मल डीएनए कुड बी प्रोबेबल मैलिग्नेंट सेल। अगर रिन्यू हो गया वो सेल वैसे के वैसे डैमेज डीएनए से नया सेल बन गया तो वो क्या है, कैंसर सेल है, राइट। सो दैट्स हाउ दीज आर द रेगुलेटरी फैक्टर्स, ठीक है। नाउ सेल साइकिल control is disturbed by following in a cancer cell. Cell cycle control is disturbed by following in the cancer cell. तो सेल साइकिल को डिस्टर्ब कौन करता है? सेल साइकिल डिस्टर्ब कौन करता है भाई? है ना, सेल साइकिल को डिस्टर्ब करने वाला देखो पहला पॉइंट क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ फैक्टर्स फंक्शनिंग। जो भी ग्रोथ फैक्टर्स है अपन ने देखे सेल, जब when I was teaching you the cell, at the time we have seen the growth factors, and if there is abnormal growth factors functioning is there, so that leads to cancer. Abnormal growth factors अगर होंगे, abnormal function of growth factor leads to cancer. Abnormal CDK function, है ना, abnormal cyclidine dependent kinase, abnormal CDK function leads to cancer। देखो कैंसर क्यों होता है, कैंसर क्यों होता है, कैंसर क्यों होता है? abnormal growth factor का function, abnormal CDK function and faulty DNA synthesis that leads to cancer and abnormal decrease in the negative regulatory factor। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन अगर कम हो गया तो abnormal decrease in the tumor suppressor gene leads to cancer। तो कैंसर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? आप रिस्पॉन्सिबल हो या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं या फिर और कौन है? तो abnormal growth factor functioning, abnormal CDK function, abnormal DNA synthesis and abnormally decreased in the negative forces, that is a tumor suppressor gene P53। अगर ये इसमें कुछ गपला होता है तो आपको कैंसर होता है ना। और डीएनए को डैमेज कौन करता है भाई? डीएनए को डैमेज जो करता है उसको बोलते हैं अपन म्यूटाजेंस, उसको बोलते हैं अपन ऑन्कोजेंस, उसको बोलते हैं अपन कार्सिनोजेंस, है ना। तीन टर्म्स होता है, कार्सिनोजेन, म्यूटाजेन एंड ऑन्कोजेन, है ना। ये क्या है? दैट में बी आइदर केमिकल, दैट में बी आइदर रेडिएशन, दैट में बी आइदर एनी फ्री रेडिकल, दैट में बी आइदर एनी सब्सटेंस, है ना। तो म्यूटाजेन, कार्सिनोजेन, ऑन्कोजेन, ये तीन चीजें कौन है? ये कोई भी हो सकता है। जैसे रेडिएशन, यूवी लाइट क्या है? ऑन्कोजेन है, ठीक है ना, म्यूटाजेन है। जैसे मान लीजिए कोई इम्प्योरिटी है, वो क्या है? म्यूटाजेन है, क्या कार्सिनोजेनिक इम्प्योरिटी, है ना। या फिर कोई कंपाउंड है या फिर कोई मेटल है तो वो कार्सिनो। बट नॉर्मली कैंसर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ दिस, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इतना खतरनाक आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, इतना अच्छी तरीके से आपको किसी ने समझाना नहीं होगा कैंसर भाई, ये गारंटी है मेरी। I guarantee you nobody has taught you cancer in this way।
आई नो, बिकॉज कॉलेज में क्या चलता है मुझे मालूम है, एंड उनको कुछ लेना देना नहीं है, आपका सेमेस्टर क्लियर करना है बस. बट दिस इज नॉट अ माई वे इज अ डिफरेंट, माई वे इज अ माई ओन वे, दैट इज अ वेरी डिफरेंट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5000 में आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, इट इज नॉट इजी. ठीक है, राइट. सो एंटी कैंसर ड्रग्स में भी, anti-cancer drugs may be. Now anti-cancer drug may be either cell cycle specific, है ना, phase specific or cell cycle specific or phase specific cell cycle active agent. इसमें आता है आपका एंटी मेटाबोलाइट, है ना, which is active in S phase, pink alkaloids in M phase. ठीक है, दूसरा आता है आपका non phase non specific can damage the DNA at any phase, for example alkylating agent and anti-tumor antibiotic. तो सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग एंड नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग. ठीक है, ऑल्सो एंटी कैंसर ड्रग में भी हार्मोन्स, है ना, एंटी कैंसर ड्रग में भी सेल साइकिल स्पेसिफिक, नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक और हार्मोन्स. तो यहाँ पे दिखाया मैंने और एक बार सेल साइकिल स्पेसिफिक G1 फेज जो है ना, G1 फेज में सेल विल स्पेंड अराउंड 40% टाइम इन G1 फेज and synthesis of cellular component for DNA synthesis. Cell will prepare for synthesis of cellular component for the DNA synthesis. Cell will prepare in a G1 phase for the synthesis. दूसरा फेज होता है आपका सिंथेसिस, यस फेज. यस फेज में क्या है, देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ डीएनए 39% होता है, एंड इन दिस फेज एंटी मेटाबोलाइट ड्रग विल एक्ट. एंटी मेटाबोलाइट ड्रग एंड अल्कलाइटिंग एजेंट दे विल एक्ट ओवर हियर. थर्ड स्टेज होता है G2 फेज. G1 फेज में जो सिंथेसिस हो चुका है, that will be corrected in the G2 phase. So bleomycin will act on this phase. Mitosis में Wink alkaloid taxanes वगैरह act करेंगे. So actual cell division is done in the mitosis. So यहाँ पे prophase, metaphase, anaphase, telophase, right? And that then after that there is a differentiation. So that's how. Okay, right? So common adverse effect of cytotoxic drug. Common adverse effect क्या होंगे cytotoxic drug के? So common adverse effect of cytotoxic drug, very very important. तो जैसे सेल, जहाँ पे सेल ज्यादा ग्रो होगा वहाँ पे कैंसर का ड्रग जो है, एंटी कैंसर ड्रग विल किल द नॉर्मल सेल वेयर देयर इज एक्टिव ग्रोथ. तो बोन मैरो में एक्टिव ग्रोथ है तो बोन मैरो सप्रेशन. अभी बोन मैरो सप्रेशन हो गया मतलब क्या होगा? सो इफ देयर इज अ बोन मैरो सप्रेशन बाय एंटी कैंसर ड्रग, बिकॉज इन द बोन मैरो देयर इज अ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, देयर इज अ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, राइट, देयर इज अ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स इन द बोन मैरो, राइट. सो एंटी कैंसर ड्रग एक्ट ऑन अ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स. So it will kill the cancerous cell, but also kill the normal cells where there is active growth. तो active growth कहाँ पे होता है? RBCs, है ना, RBCs अगर मरेंगे तो क्या होगा? एनीमिया. तो RBCs मरेंगे तो क्या होगा? एनीमिया. WBCs मरेंगे तो क्या होगा? WBCs मरेंगे तो क्या होगा? WBC मरेंगे तो इम्यूनिटी, है ना, डिक्रीज इम्यूनिटी, है ना. और प्लेटलेट मरेंगे तो क्या होगा? प्लेटलेट मरेंगे तो क्या होगा? है ना, प्लेटलेट में मरेगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग. ठीक है, तो बोन मैरो सप्रेशन कॉज्ड बाय एंटी कैंसर ड्रग लीड्स टू एनीमिया, देन एप्लास्टिक एनीमिया, देन डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, दैट इज अ, है ना, ल्यूकोपेनिया, देन, है ना, granulocytosis, leukopenia due to effect on a WBC, and also anti-cancer drug also affect on a platelet leads to bleeding. तो देखो एक ही एडवर्स इफेक्ट में कितने सारे एडवर्स इफेक्ट आते हैं. क्यों? बिकॉज एंटी कैंसर ड्रग सप्रेस द बोन मैरो. सेकंड, एलोपेसिया एंड हेयर लॉस. बिकॉज एलोपेसिया हेयर लॉस क्यों? बिकॉज एंटी कैंसर ड्रग एक्टिवली डिवाइडिंग सेल के ऊपर एक्ट होते हैं, और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल कहाँ पे होता है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल आपके नॉर्मली बॉडी में भी होता है, जैसे हेयर फॉलिकल इज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, बोन मैरो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, जीआईटी का लाइनिंग एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, है ना, आपके टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, दैट इज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल. दैट्स व्हाई एंटी कैंसर ड्रग हैज अ बोन मैरो सप्रेशन, दैट इज एनीमिया, देन डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, ओके, देन agranulocytosis, leukopenia, then thrombocytopenia. These are the adverse effect. Okay, then alopecia, hair loss, nausea, vomiting, because GIT में अल्सरेशन करेगा, स्किन के ऊपर अल्सरेशन करेगा, स्किन एंड GIT अल्सरेशन, म्यूकोजल अल्सरेशन, तो गैस्ट्राइटिस करेगा, म्यूकोसाइटिस करेगा, डैमेज टू द गॉन्ड्रल ऑर्गन, तो यहाँ पे इंपोर्टेंस करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा, एंड ऑल दे आर द टेराटोजेनिक इन नेचर. दीज आर द कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ
anti-cancer drug, common adverse effect of antineoplastic drug, common adverse effect of cytotoxic drugs. खतरनाक, एक नंबर जाळंदूर संघटक. नादच करायचं नाही भाई, ठीक आहे. फक्त तुम्हाला समजलं का हे सांगा फक्त, ठीक आहे, ठीक आहे. सो दीज आर द कॉमन ऍडवर्स इफेक्ट, है ना, नाद नाही करायचा आपला, ठीक आहे. इम्पेयर्ड वुंड हिलिंग, ग्रोथ इनहिबिशन इन द चिल्ड्रन. सो दीज आर द डिफरेंट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है ना. तो यहाँ पे देखो ड्रग्स, सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग, सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग. तो है ना, G1 फेज एंड एस फेज में कौन से ड्रग एक्ट होंगे? G1 फेज एंड एस फेज में इटोपोसाइड. इटोपोसाइड क्या है? सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग. बट सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग होता है आपका प्लेटिनम कंपाउंड्स, प्लेटिनम कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स, सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन, ऑक्साप्लैटिन, ठीक है. यस फेज में कौन है? यस फेज में सेल साइकिल स्पेसिफिक कौन है? एंटी मेटाबोलाइट. सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक कौन है? अल्कलाइटिंग एजेंट, ठीक है. G2M फेज में ट्रांजिशन जो होता है, ट्रांजिशन बिटवीन G2M फेज, सेल साइकिल स्पेसिफिक कौन है? ब्लियोमाइसिन एंड इटोपोसाइड, ठीक है. सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक कौन है भाई? एंथ्रासाइक्लिन, डेक्टिनोमाइसिन, है ना. माइटोसिस फेज जो होता है, माइटोसिस. सो इन द माइटोसिस व्हाट आर द सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग? विंकाल्कुलाइट, टैक्सेन, है ना, देन इस्ट्रामास्टिन. प्लांट प्रोडक्ट मोस्टली दे आर द एम फेज सेल साइकिल स्पेसिफिक. बाद में सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक कौन है? मिटोमाइसिन एंड कैम्पोथिकेन, ठीक है, मिटोमाइसिन एंड कैम्पोथिकेन. सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. तो देखो अभी क्या है, अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं. क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू बी कवर्ड. Please share this video with your friends, classmates, juniors who want to prepare for GPAT Niper DI Pharmacist. And believe me, I will explain you all these things in such a manner that you will never forget. And nobody has taught you these anti-cancer drug in this manner. I have not prepared at all, but the way of teaching is the similar. Okay, मेरा teaching का way ही ऐसा है. Now classification of anti-cancer drug. I will take the classification and today I will end the session, ठीक है. I will take all classification. यहाँ पे मैं 3-4 classification लेने वाला हूँ. 3 to 4 type of classification I am going to explain you, right? So classification of anti-cancer drug. So first one is nothing but the alkylating agent. First one is nothing but the alkylating agent. First class देखो, first class क्या है? Alkylating agent. First class is nothing but the alkylating agent. Alkylating agent. So alkylating agent, what they will do? They will cause alkalization of DNA. तो DNA होता है आपका DNA. 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 So alkylating agents means these drugs they will cause alkalization of DNA. Alkalization मतलब क्या? Alkali radical. एडिशन ऑफ अल्कली रेडिकल. सो अल्कली रेडिकल ऐड करेंगे, किसमें करेंगे? डीएनए में करेंगे, ताकि डीएनए फॉल्टी बन जाए. किसका? कैंसर सेल का भाई, क्योंकि कैंसर को मारना है. सो दे विल कॉज एडिशन ऑफ अल्काइल रेडिकल टू द डीएनए. डीएनए के ऊपर अल्काइल रेडिकल ऐड करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल 7th गोनोसिन फॉस्फेट, 7th पोजीशन ऑफ गोनोसिन फॉस्फेट, दे विल ऐड इथिलीन ग्रुप, है ना, मिथाइलिन ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप. सो दे विल ऐड अल्काइल रेडिकल and they will damage the DNA, they will cause the cell lysis. Okay, so in this alkylating agent you have 3 classes. Alkylating agent में आपको 3 classes है. So you have 3 classes in the alkylating agent. So first one is nothing but the nitrogen mustard. Nitrogen mustard. In this you are going to have examples like meclorethamine, cyclophosphamide, melphalan, uracil mustard, chlorambucil. देखो नाइट्रोजन मस्टर्ड क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं. वो विच वन इज नॉट अ नाइट्रोजन मस्टर्ड? तो नाइट्रोजन मस्टर्ड को याद रखना है आपको. सो मेक्लोरिथामाइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेल्फलान, यूरासिल मस्टर्ड एंड क्लोरम्बिसिल, दीज आर द नाइट्रोजन मस्टर्ड. तो अल्कलाइटिंग एजेंट, इन दैट यू हैव सेकंड सब क्लास एंड दैट इज नथिंग बट द इथाइलिन इमाइन. इथाइलिन इमाइन, तो सेकंड सब क्लास होता है इसमें. Second class is nothing but the ethylene imine. So what is ethylene imine? So ethylene imine, in that ethylene imine triethylene and triethylene thiophosphoramide known as the thiotepa. Triethylene thiophosphoramide known as the thiotepa,
and then alkyl sulfonate. Alkyl sulfonate में example है आपका busulfan. So these are the alkylating agent. What they will do? They will cause addition of alkali to the DNA, nucleotides of DNA. Nucleotide जो DNA का है उसमें alkali ऐड करेंगे. सेकंड क्लास होता है आपका एंटी मेटाबोलाइट. सेकंड क्लास है एंटी मेटाबोलाइट. तो एंटी मेटाबोलाइट क्या करेंगे भाई? जो मेटाबॉलिज्म है सेल का उसको अफेक्ट करेंगे. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एंटी मेटाबोलाइट. सो एंटी मेटाबोलाइट क्यों बोलते हैं? सेल का मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेंगे, राइट? कौन से सेल का? कैंसर सेल का, है ना. सो एंटी मेटाबोलाइट में आता है फर्स्ट फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट. फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट में आता है मिथोट्रिक्सेट. क्वेश्चन 3 बार आ चुका है. दे आर ऑलरेडी आस्क्ड एटलीस्ट 3 टाइम्स इन द जीपैट. Methotrexate. So it is a folic acid antagonist. Methotrexate is a folate antagonist. Anti-cancer drug used in the cancer treatment, which is a folic acid antagonist. Question बहुत बार आ चुका है, 3 बार. Then anti-metabolite में second आता है purine antagonist. Purine antagonist मतलब क्या है? Purine spirulinase जो basis होते हैं DNA का, उसका ये analog होता है. यहाँ पे देखो purine antagonist is a 6-markaptopurine. क्या है भाई? 6-markapto. अभी markapto मतलब क्या है? सल्फर. 6 पोजीशन पे प्यूरिन के ऊपर यहाँ पे सल्फर है एंड दैट विल, है ना, ये डीएनए में जाके बैठता है और डीएनए को डैमेज करता है. देन azathioprine. 6 markaptopurine, दे आर द प्यूरिन एंटागोनिस्ट. देन थर्ड आता है इसमें pyrimidine एंटागोनिस्ट. pyrimidine एंटागोनिस्ट एग्जांपल है फ्लोरोयुरासिल, साइटोसिन, अराबिनोसाइड एंड फ्लूरोडिऑक्सीयूरिडीन. देखो pyrimidine एंटागोनिस्ट में एग्जांपल है फ्लोरोयुरासिल, साइटोसिन, अराबिनोसाइड एंड फ्लोरोआइडोक्सोयूरिडीन, है ना, फ्लोरोडिऑक्सीयूरिडीन. तो अल्कलाइटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट. The third type of anti-cancer drug is nothing but the radioactive isotope. Radioactive isotope. So they will emit the radioactive radical that will kill the cell. So radioactive iodine, radioactive gold, radioactive iodine, radioactive gold and radio phosphorus. They are known as the radioactive isotope. तो चौथा क्लास आता है इसमें साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक. साइटो मतलब सेल. साइटो मतलब क्या भाई? सेल. साइटो मतलब सेल. टॉक्सिक मतलब किल करने वाला एंटीबायोटिक. तो इसमें आता है सब एंथ्रासाइक्लिन्स. तो इन द साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक यू हैव एंथ्रासाइक्लिन. सो एग्जांपल इज एक्टिनोमाइसिन डी, मेटोमाइसिन सी, डॉक्सोरोबिसिन, डाउनोरोबिसिन, रुबिडोमाइसिन. तो ये एंटीबायोटिक नोन एज साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक. ठीक है. तो एंटीमाइटोटिक प्लांट प्रोडक्ट, एंटीमाइटोटिक प्लांट प्रोडक्ट, क्योंकि क्लासिफिकेशन और 2-3 लेना है आपको, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में दे रहा हूँ, क्योंकि और 2-3 क्लासिफिकेशन टाइप देना है मुझे. तो आई एम गोइंग टू टेक यू क्लासिफिकेशन 3 टाइम्स because classification is important for GPAT Niper DI Pharmacist. I am going to teach you in this manner only and I hope you are able to understand. समझ रहा है आपको? I hope you are understanding it. So anti-mitotic plant. So in this vinblastine, vincrystalline, taxol, etoposide, campothecane. तो एंटीमाइटोटिक प्लांट प्रोडक्ट में क्या आएगा भाई? एंटीमाइटोटिक प्लांट प्रोडक्ट में आएगा विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, विनोरलिबिन, टैक्सोल, इटोपोसाइड, कैम्पोथिकेन. देन हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट. तो हार्मोन कितने होते हैं भाई? मोस्टली हार्मोन 3 टाइप के होते हैं ना, है ना. हार्मोन देखो यहाँ पे हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट. जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल के हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन फीमेल के हार्मोन होते हैं एंड टेस्टोस्टेरोन मेल का हार्मोन होता है ना. तो ये 3 हार्मोन प्लस इनको रेगुलेशन करने वाले हार्मोन, मतलब गोनेडोट्रोपिन रेगुलेटिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो हार्मोन्स दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर, दे प्लेज इन इंपॉर्टेंट रोल इन द एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड आल्सो टेस्टिकुलर कैंसर एंड योर प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर. तो हार्मोनल ड्रग, हार्मोन्स जब कम ज़्यादा होते हैं, बढ़ते हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, उसके बाद में आपका ब्रेस्ट कैंसर, इसके रीजंस होते हैं हार्मोन्स. हार्मोनल के कारण भी रीजन होता है कैंसर. सो फॉर दैट, सो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टैमोक्सिफेन, प्रोटामाइड, देन सिप्रोटोन एसिटेट, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड ऑक्टेरोटाइड. दीज आर द एग्जांपल्स. ठीक है. देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में आएगा ट्रास्टुजुमैब, रितुक्सिमैब, इमिटिनिब. बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में आएगा आपको इंटरफेरॉन, बीसीजी एंड लेवेनिसोल. मिसलेनियस में आएगा आपका हाइड्रोक्सीयूरिया,
हाइड्रोक्सीयूरिया, एल एस्परजिनेस, एल एस्परजिनेस क्या है भाई, एल एस्परजिनेस इज अ एंजाइम, तो इसको अलग कैटेगरी भी कर सकते हो आप, एंजाइम, एल एस्परजिनेस इज अ एंजाइम। सिस्प्लाटिन, सिस्प्लाटिन क्या है भाई, ये प्लैटिनम कंपाउंड है, तो प्लैटिनम कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको भी अलग से कैटेगरी कर सकते हो। तो देर आर लॉट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स, दे आर क्लासिफाइड इन अ डिफरेंट वे। ये एक क्लासिफिकेशन मैंने आपके सामने रखा है, एक्सप्लेन किया है ना। ये क्लासिफिकेशन दिया है फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोथेरापेटिक्स बाय सातुस्कर एंड भंडारकर। सातुस्कर भंडारकर का जो बुक है फार्माकोलॉजी का, उसमें ये क्लासिफिकेशन दिया है, राइट। नाउ विल सी द क्लासिफिकेशन गिवन इन द केडी त्रिपाठी। नाउ क्लासिफिकेशन गिवन इन द केडी त्रिपाठी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। एंटी कैंसर ड्रग पार्ट 1, एंटी कैंसर ड्रग क्लासिफिकेशन 1, एंटी कैंसर ड्रग क्लासिफिकेशन 1, very very important. Please share this link to your friends, classmates and juniors who are preparing for GPAT Niper DI Pharmacist। एक नंबर ऐसा सेशन चल रहा है यहाँ पे, खतरनाक, आपको अल्टीमेट तरीके से मैं आपको यहाँ पे एंटी कैंसर ड्रग पढ़ा रहा हूँ। और ये जो सेशन है इसके बाद और 1 या 2 सेशन होंगे जो आपके लिए डेमो सेशन होंगे, उसके बाद में जो एनरोल करेगा बैच में उसको ही मैं पढ़ाऊंगा, और है ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो एंटी कैंसर ड्रग्स क्लासिफिकेशन पार्ट 1, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग क्लासिफिकेशन पार्ट 1, ये केडी त्रिपाठी का क्लासिफिकेशन है। सो एंटी कैंसर ड्रग्स, तो दे आर क्लासिफाइड इनटू मेजरली इन 3 कैटेगरी। यहाँ पे उसमें 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, मेजर कैटेगरी इतना। सो मेजरली दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी इज नथिंग बट द साइटोटॉक्सिक ड्रग, फर्स्ट कैटेगरी इज नथिंग बट द साइटोटॉक्सिक ड्रग। पहला कैटेगरी है साइटोटॉक्सिक ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग पहला कैटेगरी है साइटोटॉक्सिक ड्रग। साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब किलिंग, सेल को किल करने वाले ड्रग भाई कौन से है, साइटोटॉक्सिक ड्रग है ना। साइटोटॉक्सिक ड्रग मतलब सेल को किल करने वाले ड्रग, सेल को मारने वाले। कौन सा सेल को, आपके सेल को नहीं, कैंसर सेल को मारने वाले। लेकिन कैंसर सेल को मारते मारते कुछ अपने सेल भी मर जाएंगे, है ना। सो लाइन याद रखो, यू कैन नॉट किल द कैंसरस सेल अनलेस किलिंग द नॉर्मल सेल, ठीक है, खतरनाक है ना। सो साइटोटॉक्सिक ड्रग, तो इसमें देखो पहला क्लास है आपका, फर्स्ट क्लास इज नथिंग बट द अल्कलाइटिंग एजेंट, फर्स्ट क्लास इज नथिंग बट द अल्कलाइटिंग एजेंट। So very very important, alkylating agent. So what they will do, they will cause alkalization of DNA, they will cause addition of alkali radicals in the DNA. So first class alkylating agent, in that you have also subclasses। alkylating agent में क्या है, different classes है। तो alkylating agent में देखो पहला नाइट्रोजन मस्टर्ड है, नाइट्रोजन मस्टर्ड। तो इन दिस नाइट्रोजन मस्टर्ड यू हैव मेक्लोरेथामाइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेक्लोरेथामाइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, आइफॉस्फेमाइड, ओके, और फॉस्फेमाइड सिंपली क्लोराम्ब्यूसिल एंड मेल्फालाम। तो इसको याद कैसे रखना है, यू कैन रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन, ओके। यू कैन रिमेंबर नाइट्रोजन मस्टर्ड, यू कैन रिमेंबर नाइट्रोजन मस्टर्ड इन अ सिंपल वे। फॉर एग्जांपल जैसे, है ना, देखो सीएम आईसीएम, एक तो आप याद रखते हो सीएम आईसीएम, दैट इज वन ट्रिक, सीएम आईसीएम, सीएम आईसीएम, ओके। सीएम आईसीएम मतलब मेक्लोरेथामाइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, फॉस्फामाइड एंड क्लोराम्ब्यूसिल, है ना। या फिर आप ऐसे रखते हो, मैंने, है ना, मैंने इफो कंपनी का साइकिल मंगाया, है ना, मैंने इफो कंपनी का साइकिल मंगाया। मैंने मतलब क्या, मैंने मतलब मैं मतलब मेल फलान, है ना। इफो मतलब फॉस्फामाइड, साइकिल मंगाया, साइकिल मतलब साइक्लो, तो मैंने इफो कंपनी का साइकिल मंगाया, है ना। सो यू कैन रिमेंबर दिस, ओके। देन सेकंड क्लास आता है इसमें इथिलीन इमाइन, इथिलीन इमाइन में आता है थायोटेपा। थर्ड क्लास अल्कलाइटिंग एजेंट में अल्काइल सल्फोनेट, इसमें आता है ब्यूसल्फान, ब्यूसल्फान एंड नाइट्रोस यूरिया, नाइट्रोस यूरिया में आता है मस्टिन, कारमस्टिन, लोमस्टिन एंड इज्रामस्टिन, 3 आता है इसमें नाइट्रोस यूरिया में। देन ट्रायाजिन, ट्रायाजिन मतलब क्या, ए 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग 3 नाइट्रोजन, ट्राई मतलब क्या 3, अजीन मतलब क्या है, अजीन इज द टर्म फॉर नाइट्रोजन, तो ट्रायाजिन। तो इसमें आता है डाइकार्बेजिन एंड टेमोजोलामाइड। एंड देन अल्कलाइटिंग एजेंट में लास्ट क्लास आता है मिथाइल हाइड्रोजन, इसमें आता है प्रोकार्बेजिन। तो देखो अल्कलाइटिंग एजेंट, देखो एंटी कैंसर ड्रग दे आर हैविंग मेजरली
three classes. So cytotoxic drug class 1. So in that alkylating agent, first class is nitrogen mustard, second class is ethylene amine, ethylene imine, third class is alkyl sulfonate, fourth one is nitrosourea, fifth one is a triazine and sixth one is a methyl hydrazine. तो ये हो गए आपके alkylating agents, right? तो second class आता है देखो प्लैटिनम कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स. तो सेकंड क्लास कौन सा है भाई? प्लैटिनम कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स. सेकंड प्लैटिनम कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स. सो इसमें सब प्लैटिन आएगा, सिस प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन, ऑक्साप्लैटिन, सिस प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन, ऑक्साप्लैटिन. तो ये ऑक्साप्लैटिन जो है ना, ऑक्साप्लैटिन इट इज अ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कार्बोप्लैटिन, याद रखना है. एंड दे एज अ किडनी टॉक्सिटी. यस की क्या है? नेफ्रोटॉक्सिटी. इनको किडनी टॉक्सिटी होता है, अपन बाद में देखेंगे. बिकॉज दे आर हैविंग प्लैटिनम आयन इन दिस स्ट्रक्चर, दे आर किडनी टॉक्सिक, है ना, किडनी को टॉक्सिटी करते हैं ये. दे आर टॉक्सिक टू किडनी, रीनल टॉक्सिटी, राइट, है ना. तो थर्ड क्लास है आपका एंटी मेटाबोलाइट. एंटी कौन सा मेटाबोलाइट? एंटी मेटाबोलाइट. कौन सा मेटाबोलाइट भाई? एंटी मेटाबोलाइट. तो इसमें देखो फर्स्ट आता है फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट. फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट कौन है भाई? कौन है? आप हो क्या? नहीं. मैं हो क्या? नहीं. कौन है भाई? मिथोट्रिक्सेट एंड ट्रामट्रिक्सेट. ये दो क्या है? फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट और फोलेट एंटागोनिस्ट. इसके ऊपर कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है. देन प्यूरिन एंटागोनिस्ट, मतलब ये प्यूरिन क्या एंटागोनिस्ट है? इसमें आएगा आपका 6 मार्कप्टोप्यूरिन, 6 थायोगोनिन, एज़थायोप्यूरिन एंड फ्लूटाराबिन. एंड pyrimidine एंटागोनिस्ट में आएगा 5 फ्लोरोसिल, कैपेसिटाबिन एंड साइटराबिन. ठीक है. तो ये क्या है? साइटोटॉक्सिक ड्रग और एंटी कैंसर ड्रग क्लासिफिकेशन 1. एंटी कैंसर ड्रग क्लासिफिकेशन 1. तो आई होप यू आर गेटिंग, समझ रहा है आपको? आई होप समझ रहा है आपको. If you are getting, please write yes in the comment box. If yes, write yes in the comment box. So we'll see the next. देखो यहाँ पे एंटी कैंसर ड्रग क्लासिफिकेशन 2, साइटोटॉक्सिक ड्रग क्लासिफिकेशन 2. साइटोटॉक्सिक ड्रग क्लासिफिकेशन 2 मतलब क्या? इसमें सब क्या रहेंगे? मोस्टली इसमें प्लांट प्रोडक्ट रहेंगे. मोस्टली इन दिस यू हैव प्लांट प्रोडक्ट. So cytotoxic drug class 2 in this, okay, first those drug which damages the microtubule, है ना. माइक्रोट्यूबुल क्या होता है? माइक्रोट्यूबुल क्या होता है ये जानने के लिए आपको सेल में जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सेल लिया है पहले. व्हाट इज माइक्रोट्यूबुल? इट इज अ साइटोस्केलेटन. माइक्रोट्यूबुल इज अ साइटोस्केलेटन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेली. तो माइक्रोट्यूबुल डैमेजिंग एजेंट. तो माइटोसिस में क्या होता है भाई? माइटोसिस में माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, तो दैट इज डैमेज्ड. सो माइक्रोट्यूबुल डैमेजिंग एजेंट, तो इसमें 3 टाइप का आता है. एक आता है विंका अल्कोलाइड्स. तो विंका अल्कोलाइड्स मतलब विंका अल्कोलाइड्स इज नथिंग बट द अल्कोलाइड्स ऑफ्टन फ्रॉम कैथरांथस रोजिस फैमिली अकांथेसी. So in that you are going to vincristine known as oncovin, then vinblastine and vinorelbine. Vincristine, vinblastine, vinorelbine. ये क्या है? विंका अल्कोलाइड्स. So they damages the microtubule formation and causes the inhibition of mitosis and act as an anti-cancer drug. दूसरा आता है आपको टैक्सेंस. सेकंड क्लास इज टैक्सेंस. तो टैक्सेन दे आर ऑफ्टन फ्रॉम, है ना, दे आर पैक्लिटैक्सेल एंड डोसिटैक्सेल. पैक्लिटैक्सेल, डोसिटैक्सेल. एंड थर्ड में आता है इस्ट्रामस्टिन. इस्ट्रामस्टिन दिस इज सिंथेटिक डेरिवेटिव, सिंथेटिक डेरिवेटिव, है ना. तो दोज ड्रग व्हिच विल डैमेज द माइक्रोट्यूबुल, दे आर आल्सो 3 टाइप. देन सेकंड आता है टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर. टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर. देखो कंफ्यूजन होता है कि टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर कौन है, टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर कौन है, टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर कौन है, टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर कौन है. देखो याद रखने का तरीका है सिंपल. देखो इटोपोसाइड, टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर का एग्जांपल है इटोपोसाइड, है ना. साइड कितना होता है? साइड कितना होता है? लेफ्ट साइड एंड राइट साइड 2 होता है. तो साइड मतलब साइड आ गए तो 2 लिखने हैं. साइड एंड 2 दे हैव अ रिलेशन. साइड कितने होते हैं? 2 साइड होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, है ना. तो साइड मतलब 2. तो इटोपोसाइड इज अ टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर. क्वेश्चन आ चुका है. इटोपोसाइड इज अ टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर. साइड कितने होते हैं? 2. तो साइड से याद रखने का 2. टोपोआइसोमरेज 2 इटोपोसाइड. ठीक है. देन टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर. टोपोआइसोमरेज का रोल क्या होता है? टोपोआइसोमरेज आर इन्वॉल्व इन द नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, रेप्लिकेटेड डीएनए. जब रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, तो जब सुपर कॉइलिंग होता है वन साइड पे, तो वहां पे रिलीव करने के लिए टोपोआइसोमरेज होते हैं. टोपोआइसोमरेज also known as the DNA kinases. So when you will see the nucleic acid, at that time you will get a
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टोपोआइसोमरेज, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. तो टोपोआइसोमरेज वन इनहिबिटर कौन है? टोपोआइसोमरेज वन इनहिबिटर दे आर नोन एज टोपोटिकैन एंड इरिनोटिकैन. देखो टोपोआइसोमरेज वन इनहिबिटर में क्या है? टोपोटिकैन, 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 इरिनोटिकैन. टोपोआइसोमरेज वन इनहिबिटर टिकैन, टोपोटिकैन एंड इरिनोटिकैन, दे आर द वन इनहिबिटर. इटोपोसाइड, साइड क्या होता है? साइड कितने होते हैं? दो होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. सो इटोपोसाइड इज अ टोपोआइसोमरेज टू इनहिबिटर. ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्लास है आपका, है ना, फोर्थ क्लास इज नथिंग बट द एंटी कैंसर एंटीबायोटिक. एंटी कैंसर एंटीबायोटिक ये होगा आपको फोर्थ क्लास. तो इसमें क्या है? एंटी ट्यूमर एंटीबैक्टीरियल, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स है. इसमें सब है एंथ्रामाइसिन, एंथ्रासाइक्लिन्स. इसमें कौन सा एंटीबायोटिक है? एंथ्रासाइक्लिन्स. जैसे एक्टिनोमाइसिन डी, दो, ओके, एक्टिनोमाइसिन डी, देन डॉक्सोरुबिसिन, देन डाउनोरुबिसिन, देन इपिरुबिसिन, ओके, मिटो, है ना, मिटोजेंट्रोन, देन ब्रियोमाइसिन एंड मिटोमाइसिन सी. तो आप बोलेंगे इसको याद कैसे रखना है? यार भाई सिंपल है, दिमाग खाने की जरूरत ही नहीं, मतलब इतना सिंपल है. देखो इसमें दिख क्या रहा है आपको? आपको इसमें एक ही दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ई दिख रहा है. मतलब क्या? मुझे एबीसीडी आता है, तो मुझे आता है तो आपको भी आता है ना एबीसीडी. तो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक याद कैसे रखना है? एबीसीडी ई, ए बी सी डी ई एम, है ना. मी एबीसीडी म्हणतो, काय म्हणतो? मी एबीसीडी म्हणतो. तो मी कौन है भाई? है ना, तो मी एबीसीडी म्हणतो, या फिर मैं एबीसीडी, मुझे एबीसीडी आता है ना. एम फॉर क्या है? एम फॉर मैं नहीं, एम फॉर, है ना, एम फॉर मिटो, है ना, मिटोजेंट्रोन, एम फॉर मिटोजेंट्रोन, ए फॉर एक्टिनोमाइसिन डी, बी फॉर, है ना, देखो मुझे एबीसीडी आता है, मुझे मतलब मिटोजेंट्रोन, ए फॉर एक्टिनोमाइसिन डी, बी फॉर ब्लियोमाइसिन, बी फॉर ब्लियोमाइसिन, बी फॉर ब्लियोमाइसिन, ए फॉर एक्टिनोमाइसिन डी, बी फॉर ब्लियोमाइसिन, सी फॉर मिटोमाइसिन सी, सी फॉर मिटोमाइसिन सी, डी फॉर डाउनोरुबिसिन एंड डॉक्सोरुबिसिन, डी फॉर डाउनोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन, एंड ई फॉर इपिरुबिसिन. तो मुझे एबीसीडी आता है, तो आपको भी एबीसीडी आना चाहिए. तो एबीसीडी मतलब क्या है? एंटीबायोटिक. कौन सा एंटीबायोटिक भाई? एंटी कैंसर एंटीबायोटिक. तो यू कैन रिमेंबर एंटी कैंसर एंटीबायोटिक बाय दिस मैनर, और इफ यू नीड, if you can make other tricks you can make. ठीक है, वैसे तो ज्यादा ट्रिक्स के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता. देन, है ना, देन फिफ्थ क्लास इज नथिंग बट द मिसलेनियस. जिसका कोई क्लास नहीं उसको क्या है? जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? भगवान होता है. तो जिस ड्रग का कोई क्लास नहीं होता है उसको बोलते हैं मिसलेनियस, है ना. जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है भाई. तो जिसी ड्रग का कोई क्लास नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? मिसलेनियस. तो इसमें आता है हाइड्रोक्सी यूरिया, इसमें आता है येलो एस्पर्जिनेस. येलो एस्पर्जिनेस मतलब ये एंजाइम का क्लास में डाल सकते हो आप. देन ट्रिटिनोइन, ट्रिटिनोइन को आप बोल सकते हो विटामिन. देन आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड. सो दिस इज अ साइटोटॉक्सिक ड्रग क्लास 2, साइटोटॉक्सिक ड्रग क्लासिफिकेशन 2. चलिए फटाफट नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं. नेक्स्ट क्लास क्लासिफिकेशन नंबर 3. ये क्लासिफिकेशन मैं आज ही फिनिश करने वाला हूँ. क्लासिफिकेशन नंबर 3, एंटी कैंसर ड्रग क्लास 3, एंटी कैंसर ड्रग क्लास 3. तो एंटी कैंसर ड्रग का थर्ड क्लासिफिकेशन है ना, एंटी कैंसर ड्रग 3, है ना. तो एंटी कैंसर ड्रग टाइप 3, है ना, उसमें आता है फर्स्ट, एक फर्स्ट क्लास है टारगेटेड ड्रग. कौन से ड्रग? टारगेटेड ड्रग. कौन से ड्रग भाई? टारगेटेड ड्रग. तो कहाँ पे टारगेट है भाई? टारगेट मतलब आपका कैंसर हो गया है, आपको कैंसर हो गया है टेस्टिस में, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा हो गया आपको. तो आप बाकी ड्रग यूज करके सभी बॉडी के सेल को मार रहे हो. तो पर्टिकुलर टेस्टिकुलर कैंसर के लिए टारगेट करने वाली ड्रग क्या है? टारगेटेड ड्रग, है ना. तो टारगेटेड ड्रग मतलब क्या? पर्टिकुलर टाइप के कैंसर में ही यूज होंगे, और टारगेटेड ड्रग को जनरल एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे. टारगेटेड ड्रग को दे विल नॉट हैव ऑल द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग. जैसे नॉर्मली एंटी कैंसर ड्रग का बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट होता है, टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग का एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, राइट. तो टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग. एंड सेकंड आता है हार्मोनल ड्रग. सेकंड आता है हार्मोनल ड्रग, हार्मोनल ड्रग.
टारगेटेड ड्रग कौन से? फर्स्ट क्लास आएगा उसको, फर्स्ट क्लास आता है इसमें, फर्स्ट क्लास आता है टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर। टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर। टायरोसिन काइनेज क्या है भाई? तो टायरोसिन काइनेज इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, है ना, तो उसको इनहिबिट करेंगे तो कैंसर कम हो जाएगा। सो इमिटिनब एंड निलोटिनिब, इमिटिनिब, निलोटिनिब, they are the monoclonal antibodies. Then epidermal growth factor receptor inhibitor. तो epidermal growth factor क्या करता है? epithelial cancer करता है. So if there is increased activity of epidermal growth factor, so you will get a epidermal cells and cancer of epidermis. So epidermal growth factor inhibitor, तो उसमें आता है जेप्टिनिब, इरलोटिनिब एंड सेटुक्सिमैब, है ना, जेप्टिड, है ना, जेपिटिनिब, इरलोटिनिब एंड सेतुक्सिमैब। देन एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर मतलब एंजियोजेनेसिस मतलब, है ना, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर मतलब सेल, है ना, जो ब्लड वेसल का लाइनिंग वगैरह होता है उसमें, तो इसमें एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर में आता है सुनीतिनेब, है ना, सुनीतिनिब, है ना, सुनीतिनिब एंड है ना, बेवासीजुनेब एंड सुनीतिनिब। तो ये एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ये मैं और एक बार कल भी लूंगा ये क्लासिफिकेशन। देन प्रोटियोजोम इनहिबिटर में आता है बोर्टेजोमिब, प्रोटियोजोम इनहिबिटर में बोर्टेजोमिब, ये क्या है? ड्रग का नाम है। देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में आता है ऋतु, भाई ऋतु बहुत खतरा है, रितुक्सिमैब, है ना। देन नेक्स्ट क्लास है हार्मोनल ड्रग, तो हार्मोनल ड्रग में क्या आएगा? वही सब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन, एंटी एंड्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, है ना, मतलब दिमाग में ऐसा घूमना चाहिए वो सब कुछ, तब जाके आपको जीपैट नाइपर में रैंक लाओगे, तब ना आगे एक नंबर। देखो हार्मोनल ड्रग में आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में क्या आएगा भाई? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आएगा प्रेडनिसोलोन, है ना, प्रेडनिसोलोन, है ना, प्रेडनिलोन, बीटामेथाजोन, डेक्सामेथाजोन, ट्राइमसिनोलोन, ये सब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फिर ईस्ट्रोजन मतलब ईस्ट्रोजन के ड्रग्स जैसे इथाइल ईस्ट्राडायोल एंड फोस्फेस्ट्रॉन, इथाइल ईस्ट्राडायोल एंड फोस्फेस्ट्रॉन, दे आर द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर स्टिमुलेंट, ईस्ट्रोजन एगोनिस्ट, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर स्टिमुलेंट, ठीक है। क्योंकि कुछ ब्रेस्ट कैंसर हो गया आपका, ओवेरियन कैंसर हो गया, एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया, टेस्टिकुलर कैंसर हो गया, बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो गया, तो इसमें ये हार्मोन्स का रोल रहता है। तो इसलिए हर एक कैंसर का आप इंडिविजुअल देखेंगे, डोंट वरी, अभी सब क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो देन सेकंड क्लास आएगा ईस्ट्रोजन का इथाइल ईस्ट्राडायोल फोस्फेस्ट्रॉल। थर्ड आएगा आपका सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सेरोटोनिन, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ये CRMS, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इसमें आता है टैमोक्सिफेन एंड टोर्मीफेन, टैमोक्सिफेन, टोर्मीफेन। देन नेक्स्ट क्लास आता है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर मतलब नंबर ऑफ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को कम करेगा। इसका एग्जांपल है फुलवेस्ट्रांट, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एरोमेटेज इनहिबिटर, मतलब एरोमेटेज एंजाइम होता है, एरोमेटेज एंजाइम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कन्वर्जन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इनटू प्रेग्निलोन, राइट। तो एरोमेटेज इनहिबिटर, तो इसमें ये प्रोजेस्टेरोन जहाँ पे बढ़ता है वो उसमें काम आता है। लेट्राजोल, एनेस्टाजोल एंड एक्जिमेस्टिन, तो इसके ऊपर कम से कम 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। एरोमेटेज इनहिबिटर, इसके ऊपर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है ना। लेट्राजोल, एनेस्टाजोल, एक्सटेमेस्टिन, दे आर नोन एज एरोमेटेज इनहिबिटर। तो एरोमेटेज का रोल क्या होता है अपन वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। देन एंटी एंड्रोजन, तो एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तो उसमें आता है फ्लूटामाइड एंड बाइकुलाटामाइड, दे आर नोन एज एंटी एंड्रोजन्स। देन 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, इसका भी रोल होता है, हम देखेंगे। इसमें आता है फिनेस्टिराइड एंड ड्यूटास्टेराइड, इसके ऊपर भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। देयर हैज बीन आस्क्ड क्वेश्चन 2 टाइम्स। फिनेस्टिराइड इज अ 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, ड्यूटास्टेराइड। देन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग, है ना, सॉरी, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग, इसमें
सब रेलिन आएगा, रेलिन, नेपारेलिन है ना, नेपारेलिन, ड्यूप्रियोरेलिन एंड ट्रिप्टोरेलिन, नेपारेलिन, ल्यूप्रियोरेलिन, ट्रिप्टोरेलिन। तो रेलिन क्या है भाई, रेलिन सब क्या है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग, रेलिन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेस्टिन, तो इसमें हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एंड अदर ड्रग्स आता है। तो ये हो गया एंटी कैंसर ड्रग क्लासिफिकेशन 3। तो tomorrow we'll see again the classification and then we'll see the next point. So I hope you have understood these things. आपको समझ में आया होगा ऐसा आशा करता हूँ। And we'll okay. So this is a 6th demo lecture for your GPAT Niper DI Pharmacist online batch. So ये जो batch है GPAT Niper 25-26, not only GPAT and Niper. So in this batch GPAT Niper Drug Inspector Pharmacist, so 25-26. In this batch you are going to get a live lectures, daily live lectures within from 7 to 8:30, then recorded lectures. So all the lectures are subject wise and chapter wise. Study material you are going to get, study material में आएगा आपको 2 books. In the study material you are going to get these 2 books and also test series. So subject wise and chapter wise test series, and everything is in only 5,000 rupees. Can you believe? Can you believe? Only 5,000 rupees. Valid for 2 years. Valid for 2 years. अगर आप थर्ड ईयर में हो तो 2 साल का वैलिडिटी है. If you are in a third year, 2 years validity. If you are in a fourth year, so if you want, you can watch the lecture for 2 years. So not only for GPAT Niper, but also to get a knowledge. So I would like to request you, please join this batch only in a 5,000, and I am the only who takes only 5,000 rupees for coaching. Okay, and you are going to get guidance, you are going to get coaching from 7-time GPAT qualified guy. So that is nothing but the one and only me. So I have qualified GPAT 7 times, Niper also, ESIC also, NHRM, DHS, DMER Pharmacist also qualified. So if you are able to give your 100%, I will guarantee your rank in the GPAT to 100%. Dot. Thank you very much for your time. I hope you have understood. Thank you for your time.